not, then we continue आगे. Sorry. Take some number. Now we are in the last lap of consignment. Some difficult sums. Okay. Some lengthy ones. I want you all to take different problems. We have finished 12, 13, 14, 12, 13, right? 12 and 13 दोनों हो चुका है अपना, right? Please check एक बार. 12 and 13 हो गया है ना? You have marked. Yes. Okay. We have done 16th also, right? Yeah, तीनों वाला भी हो गया अपना. Okay. Now you take sum number 14. 14th problem. Take sum number 14. Sum number 14 is a typical problem. MCQ में बहुत बार आता था. नॉर्मल केस में आने का चांस कम है इसका, बट एक वैरायटी आपको पता होना चाहिए. 14th sum. Okay. See what are they given in sum number 14. Manoj of Noida consigned to Kiran of Jaipur. Manoj of Noida consigned to Kiran of Jaipur goods to be sold at invoice price, which is represented by 125% of cost. Consign किया हुआ है goods at invoice price, which represents 125% of cost. मतलब इसने send कैसा किया है? Cost price पे कि invoice price पे? Invoice price. And invoice price is represented by 125% of cost. So मतलब अगर cost 100 rupees है तो invoice price will be 125. Simple सा meaning है. Kiran is entitled to a commission of 10% on sales at invoice price and 25% of any excess realized above invoice price. If he is selling at invoice price, then he'll get 25. He'll get 5% of that. And if above that, any extra, then overriding commission of 25% is going to get on the difference. This also you have done many times. The expenses on freight and insurance incurred by Manoj were 15,000. तो ये क्या हुआ? ये आपका कंसाइनर का डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, नॉन रिकरिंग वाला. The account sales revealed by Manoj, received by Manoj, shows that Kiran has affected sales amounting to rupees 1,50,000 in respect of 75% of the consignment. 1,50,000 rupees का क्या है? Total sales है. And these are represented by 75% of the consignment. Consignment का 75% उसने goods बेचा है. क्या प्राइस पे बेचा है? 1,50,000 में बेचा है. बराबर है? Now, of the consignment, his selling expenses to be reimbursed were 12,000. These are the selling expenses of consignee, right? Recurring वाला खर्चा जो consignee कर रहा है. 10% of the consignment goods of the value of 18,750 were destroyed in fire at the जयपुर गोडाउन में डिस्ट्रॉय हुआ है. मतलब पहले तो लॉस कौन सा है? नॉर्मल है, अबनॉर्मल है? एबनॉर्मल लॉस है. और कहाँ इनकर हुआ है ये? जयपुर गोडाउन मतलब कंसाइनी के प्लेस में हुआ है. 10% of the goods were destroyed of the value 18,750. Kiran remitted the balance in favor of Manoj. अब क्वेश्चन तो नॉर्मल है, बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मिसिंग है. क्या करोगे? क्या मिसिंग है बता सकते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स ही नहीं है. कॉस्ट ऑफ गुड्स या इनवॉइस प्राइस ही नहीं दिया अपने को.
बट एक हिंट दिया है वहां से तो आप अब नॉर्मल लॉस वाला डिस्ट्रॉयड वाला 18750 एग्जैक्टली अब नॉर्मल लॉस वाला हिंट वो वही एक हिंट है जहां से आप ढूंढ पाओगे कॉस्ट प्राइस और आईपी को, और कोई हिंट है ही नहीं सब में, क्योंकि अगर आप सेल्स के थ्रू जाते हो तो आपको सेल्स के पार्ट में क्या दिया, सेल वैल्यू दिया हुआ है, उसने 150 में बेचा है 75%, लेकिन कितने का भेजा है, कॉस्ट कितना है अपने को मालूम ही नहीं है, आईपी कितना है मालूम ही नहीं है अमाउंट वाइज, आर यू गेटिंग दैट? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 150 में बेचा है, अभी उसने क्या प्राइस पे बेचा है, उसने जरूरी थोड़ी आईपी पे बेचा हो, उसने आईपी से ऊपर भी बेचा हो सकता है क्योंकि उसको कमीशन मिलने वाला है, ओवर राइडिंग कमीशन ओवर एंड अबाउट आईपी का. So only hint in the problem we have is regarding that abnormal loss. So let's focus on now what have they given. Goods of value 18750 are destroyed in goods of value 18750 are destroyed in the Jaipur godown. जयपुर गोडाउन का मतलब होता है ये आपका कंजाइनी के गोडाउन में डिस्ट्रॉय हुआ है, राइट? तो ये 10% ऑफ टोटल कंसाइनमेंट वैल्यू है. तो इज दिस 18750 योर कॉस्ट प्राइस, योर इनवॉइस प्राइस, योर सेलिंग प्राइस, व्हाट प्राइस इट इज? कॉस्ट प्राइस लगता है अपने को देख के कॉस्ट प्राइस है, बट ये कॉस्ट इनवॉइस है ना इनवॉइस प्राइस है. व्हाई इट इज इनवॉइस प्राइस? सर बट गुड्स सर कौन सा था? रिफ्लेक्टेड 14 सब प्रोपोर्शनेट जो भी होता है हम ऐड करते हैं कंजाइनी के गोडाउन कंजाइनी के गोडाउन में हुआ है. तो कंजाइनी के पास जो प्राइस पे गुड्स आएंगे वही प्राइस पे वो उसका इंश्योरेंस निकलवाएगा. तो कंजाइनी के पास कौन से वैल्यू पे गुड्स पहुंचे होंगे? इनवॉइस प्राइस पे पहुंचे होंगे. तो ऑब्वियसली उसका इंश्योरेंस भी कौन से वैल्यू पे निकलवाएगा? वो इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि उसके हिसाब से तो उतना ही कॉस्ट है, उसको ही मिनिमम प्राइस पे उसको बेचना है, उससे नीचे नहीं चलेगा. आर यू गेटिंग दैट? सो भले कंजाइनर का कॉस्ट कुछ और है, कंजाइनर अगर अपने लोकल सेल्स का जो गुड्स होता से, कंजाइनर है अपना नोएडा का, तो वो नोएडा में जो गुड्स बेचने वाला है वो उसकी कॉस्ट प्राइस उसको पता है, वो प्राइस पे अगर वो इंश्योरेंस निकलवाएगा वो कॉस्ट प्राइस पे निकलवाएगा जो लोकल सेल्स करने वाला है. ये गुड्स उसने आईपी पे भेजे हैं कंजाइनी को, और कंजाइनी के गोडाउन में जाके डिस्ट्रॉय हुआ. तो कंजाइनी को कौन से प्राइस पे मिले होंगे? कंजाइनी को मिले होंगे आईपी पे. तो ये आपको खाली यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये कॉस्ट नहीं है, ये आईपी है. कंजाइनी के लिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये उसके लिए वही भाव में गुड्स आया है. तो वो क्या भाव पे इंश्योरेंस निकलवाएगा? तो ये भाव पे आईपी पे गुड्स का इंश्योरेंस निकलवाया होगा उसने. तो 18750 10% गुड्स लॉस हो गए. तो 10% ऑफ व्हाट? इज दिस 10% ऑफ कॉस्ट या 10% ऑफ आईपी? व्हाट इट इज? इट इज 10% ऑफ आईपी एंड नॉट कॉस्ट. इज दिस क्लियर? बस ये एक धागा मिल गया, अभी पूरा क्वेश्चन का मिल जाएगा आपने. सी 10% of IP, we know 10% of IP is 18750. So can you tell me what is total IP in that case? 1,87,500. Total IP is 1,87,500. Simple as that. If your total IP is 187,500, so we know this equation. Just for your understanding, आप directly भी कर सकते हो. शुरुआत में हमने 25% लोडिंग डाल के ये गुड सेंड किए थे कंसाइनी को, 100 plus 25 125, right? So if I know my total IP to be 187,500, can you arrive at the total cost? 1,50,000. 1,50,000. ये भी मिल गया आपको. So 1,50,000 के गुड्स आपने 25% मार्जिन ऐड करके सेंड किए थे 187,500 में. अब अपने को ये भी पता है कि भाई ने कुछ सेल किया है. भाई ने कितना सेल किया है? भाई ने 1,50,000 का सेल किया इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउ मेनी गुड्स? Did he sell the entire lot? No, only 75%. So only 75% of the lot has been sold at 1,50,000. So similar 75% आप अगर
आईपी का लोगे और सिमिलर 75% आप कॉस्ट का लोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने कॉस्ट का और कितने आईपी का गुड सेल हुआ है. एग्री? मैंने पहले भी किया हुआ. IP 112,500. कॉस्ट इज 150. Sorry, So, cost 112,500. 1,50,000 का 75% कितना होता है? 112,500. 40625. एंड आईपी कितना था? 187,500 का 75% कितना होता है? 146,250. 140625. अच्छा 140,625. 140,625. इसका मतलब आपने मतलब वो जो कंसाइनी ने सेल किया है उसका कॉस्ट प्राइस था 112,500. वही गुड्स का आईपी था 40625 और ये गुड्स उसने बेचा है 1,50,000. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये एक आइटम से अपने को पूरा अमाउंट मिल गया. सो यही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है. पजल सा सॉल्व करना था. सो मेन चीज इधर खाली जानने वाली क्या थी? ये जो डिस्ट्रॉय हुआ ये गोडाउन में हुआ है तो उसके लिए तो प्राइस 187.50 है. सो दैट्स द आईपी एंड नॉट द कॉस्ट. रेस्ट अपार्ट एवरीथिंग वाज नॉर्मल. वो ये समझ आया? सर तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और हमने कॉस्ट ले लिया तो कैन वी राइट एन अजम्पशन? नो, सब गलत हो जाएगा. सब वैल्यूज पूरा सम गलत हो जाएगा. कांट assume. Got it? उसके गोडाउन में हुआ है ना तो ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी द आईपी. उसके ट्रांजिट में हुआ होता देन इट वुड हैव बीन द कॉस्ट. देन वुड हैव बीन वो कंसाइनर का वैल्यू का गुड्स अभी तक पहुंचा ही नहीं उसके पास. देन इट इज कॉस्ट प्राइस. कंसाइनर के गोडाउन में हुआ है तो भी कॉस्ट प्राइस, बट कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है तो इट रिप्रेजेंट्स द आईपी. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम. एक बार सब वैल्यूज मिल गई अब तो धड़ाधड़ अपने को प्रॉब्लम में डालते जाना है. बट प्रॉब्लम में रिकॉर्ड करते वक्त ध्यान रखना है. यस सर ये 75% वाला नहीं समझा. 75% वाला 1,50,000 represents 75% of the goods sold ना. यस. सो टोटल गुड्स जितने थे उसका 75% उसने 1,50,000 में बेचा है सेल वैल्यू. हाँ. तो अपने टोटल गुड्स का कॉस्ट कितना था ये हमने ढूंढा ना अभी अभी. ये कॉस्ट है 150 और टोटल आईपी भी मालूम है 187,500. समझो 100 यूनिट थे. 100 हाँ. तो 100 यूनिट्स को उसने 100 यूनिट्स का 75 मतलब 75 यूनिट्स उसने 1.5 लाख में बेचा ऐसा. तो 100 यूनिट्स का आईपी भी मालूम है और 100 यूनिट्स का सीपी भी मालूम है अपने को टोटल. हाँ. तो 75 यूनिट्स का कितना? 187,500 अपॉन 100 इंटू 75. और 150 का भी ये 1,50,000 100 यूनिट्स का है ना कॉस्ट. तो 75 यूनिट्स का कितना? ये ढूंढने का रीजन क्या था? उसका कमीशन. जो अपने को कमीशन कैलकुलेट करना है ना उसके लिए ये रेडी करके रखा हुआ है. कमीशन के लिए क्या दिया हुआ है आपको? उसको कितना कमीशन देना है? 5% ऑफ आईपी एंड 25% ऑफ सरप्लस. बेसिकली 5% उसको किस पे मिलेगा? जो गुड्स उसने आईपी पे बेचे हैं. तो ये तो सेलिंग प्राइस है ना 1.5 लाख. इसका आईपी क्या है? करस्पॉन्डिंग. हाँ. करस्पॉन्डिंग आईपी इज 140,625 एंड सरप्लस कितना कमाया उसने? आईपी के ऊपर क्या प्राइस फेच किया उसने? ही फेच्ड 5,975. So what will be his commission? If you want, I'll write your commission also. नीचे वापस बनाता हूँ note. Commission will be 5% of 140,625 plus 25% of सर 10% है. 10 है क्या? Okay, एक मिनट. 10% of 140,625. Yeah. 10% of 140,625 and 25% of surplus realized above IP. That is 5,925. ये उसका कमीशन हो जाएगा. समझ में आया? That's it.
इसी के लिए ये ढूंढते थे, ये 3 चक्कर हम लोग बनाते थे पिछले समय भी किया एक दो सम में, ये 3 सर्कल इसी के लिए ढूंढते हैं, सेलिंग प्राइस, प्रोपोर्शनेट आईपी, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। तो करते जाओ अभी रिकॉर्ड धड़ाधड़, अकाउंट बना लो। Sir, 25% of 5925. 5925 आएगा ना, 1,50,000 minus 140,625, excess realized above invoice price, उसको And जो गुड्स, 9375 आएगा कि 5925 वो बोल। अच्छा ओके, हाँ ये कैलकुलेशन है, हाँ 937, या 9375, 1,50,000 minus 140,625, 9375, राइट, 9375 का 25%, क्लियर। ये कमीशन का मैं वापस बताता हूँ, पहले तो एंट्रीज पे जाओ, लेकिन एंट्रीज पे एक और चीज का ध्यान रखना है आपको, व्हाट दैट इज, एंट्रीज में एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, दैट इज अबनॉर्मल लॉस। देखो अबनॉर्मल लॉस अपने को पता चला कि 18750 है, but 18750 is what? Is it the cost price or is it the invoice price? Invoice price. But in your consignment account, when you record the abnormal loss, you record it at what price? Original cost price. You don't take IP there, right? Invoice अपना abnormal loss में कुछ loading element नहीं दिखाना है आपको. Abnormal loss तो गया, बसम, gone, like sold goods. You are removing it from consignment. So loading element is only in the opening goods when you are sending and closing stock. That's it. उसके अलावा बीच में कुछ दिखने वाला नहीं है लोडिंग वगैरह। तो आपको ये 18750 का करस्पॉन्डिंग कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा टू रिकॉर्ड इट इन योर फ्रेट ऐड करना पड़ेगा ना, फ्रेट ऐड करना पड़ेगा, पहले कॉस्ट मिलेगा, उसके बाद प्रोपोर्शनेट फ्रेट, उसके बाद उसकी वैल्यू मिलेगी एक्चुअल। तो करते हैं, वो भी बताता हूँ, तो घाई घाई में मिस्टेक मत करना, इसके लिए मैंने बोला सम ऑफ यू हैव स्टार्टेड दैट। तो अबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट पे वैल्यू करना है, तो थोड़ा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रुक जाओ, सॉल्विंग इट। सो इन द बुक्स ऑफ मनोज ऑफ नोएडा, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, the books of Manoj of Noida, consignment account, किरण ऑफ जयपुर कंसाइन किया है उसने, कंसाइनीज अकाउंट नीचे बना लो, किरण ऑफ जयपुर, किरण ऑफ जयपुर अकाउंट। Very first item is what? Two goods sent on consignment. Now we need not go for the calculation again. We know very well कितना है total goods sent on consignment, cost, sorry cost नहीं लिखना है यहाँ पे, IP पे भेजा है आपने, तो IP at invoice price, what is our total IP? 187,500 and corresponding loading उसको nullify कर दो, sent on consignment loading या profit of 37,500. Cost price was 150, invoice price 187,500 था, 187,500 में से प्रॉफिट हटाया तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट मिल गया अपने को। टारगेट वाज टू शो एट कॉस्ट ओनली, इंफॉर्मेशन के लिए 2 एंट्रीज मारी है, ओके। देन एक्सपेंसेस इनकर हुआ है डायरेक्ट वाला, सो टू बैंक कंसाइनर्स एक्सपेंस, कितना है कंसाइनर्स का एक्सपेंस,
that is 15,000. Then expenses, account sales आया, 1.5 लाख का सेल हुआ है, तो बाय किरण ऑफ जयपुर सेल्स का एंट्री 1.5 लाख से पहले आप अब नॉर्मल लॉस बता सकते हो, ऊपर नीचे हो गया, डोंट वरी, डेट्स नहीं है यहाँ पे, these are sales का एंट्री to consignment, this is 1,50,000 sales, then selling expenses दिया हुआ है, so to किरण ऑफ जयपुर, पर इसमें कंजाइन का नॉन रिकरिंग होता तो ऐड होता ना एबनॉर्मल लॉस में। यस 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 यस, अब नॉर्मल लॉस का कॉस्ट, फिर कंजाइनर का नॉन रिकरिंग और कंजाइनी का नॉन रिकरिंग, सब ऐड होके अब नॉर्मल लॉस मिलेगा तुमको, एक्चुअल वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल लॉस। ये जो इधर वैल्यू दिया है, अगर कोई एक्सपेंस है तो वो उसके साथ ही दिया रहेगा? नहीं नहीं नहीं, आईपी किसका होता है, खाली ओरिजिनल गुड्स का होता है, आईपी एक्सपेंस के साथ नहीं होता, इनवॉइस प्राइसेस ऑफ ओनली द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स, इट डजंट इंक्लूड एक्सपेंस, एक्सपेंस आपको अलग से दिखाने पड़ेंगे। ओके, so next we have is selling expenses 12,000, किरण ऑफ जयपुर में आएगा बाय कंसाइनमेंट 12,000, expenses reimbursed, and then there is abnormal loss, so you can write commission or abnormal loss, your wish. पहले abnormal loss दिखा देते हैं यहाँ पे, बाय abnormal loss, यहाँ पे कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, either you write by abnormal loss or you can directly write by P&L और ब्रैकेट में abnormal loss, सीधा निकाल के आपने पूरा का पूरा P&L में ट्रांसफर कर दिया, no claim, so entire amount is loss, that part you must have got right, there is no insurance claim, the entire amount is loss. So how to value this abnormal loss, तो working note बना लो, abnormal loss, okay, IP is 18750, IP is 18750, so cost is what, 18750 into 100 upon 125, that is 15,000, that is the original cost of goods lost. Did you get that, all of you? 18750 is 125 ना, so what is 100, that is the cost price. अब अकाउंट में तो अपने को कॉस्ट लिखना है, वो तो आईपी में उसका डिस्ट्रॉयड वैल्यू दिया हुआ है, उतने पे उसने इंश्योरेंस निकलवाया था, वो डिस्ट्रॉय हो गया, एक्चुअली लॉस कंजाइनर का है, वो अपने अकाउंट में से वो लॉस निकाल रहा है, उसको कितने में पड़ा था, कुछ 15,000 प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कंजाइनर का नॉन रिकरिंग, कंजाइनर का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन recurring expense of consignor proportionate, टोटल एक्सपेंस हुआ था 15,000, लेकिन वो टोटल गुड्स पे हुआ था ना, तो अपने को प्रोपोर्शनेट चाहिए, तो अपने को ये मालूम है कि 10% गुड्स लॉस हुआ है ना, तो इसके अंदर खर्चा भी 10% पड़ा होगा, 10% into 10 upon 100, right? So we get 16,500. Now if there were any non-recurring expense of consignee on these goods, would you have taken them in the valuation of abnormal loss? Yes or no? Yes, you would have taken them. Why? हर एक सम में तो नहीं लेते थे, ये सम में काय को लेते थे? हुआ है ना लॉस, उसके गोडाउन में हुआ है ना लॉस, तो सोचने का कौन सा खर्चा, कॉस्ट, यस, पार्ट ऑफ द गुड्स, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, यस, पार्ट ऑफ द गुड्स, उसने जो रिसीव किया उस पे कुछ क्लियरिंग फ्रेट पे किया होगा, यस, पार्ट ऑफ द गुड्स, उसके बाद गोडाउन में जाके गॉन, सो ऑल एक्सपेंस, कंसाइनर का नॉन रिकरिंग एज वेल एज कंसाइनी का नॉन रिकरिंग, सब कुछ आ जाता, पूरा खर्चा हम लोग निकाल देंगे फ्रॉम कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि वो हर साल होने वाला नहीं है।
सो रिमूव अगर होता तो, यहाँ पे तो नहीं है, so you get 16500. You get 16500 as your cost of abnormal loss. इसको आईपी पे मत करना, ये कॉस्ट पे ही होगा. 16500 यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, डायरेक्टली पीएनएल में चला जाएगा एज एन abnormal loss, no claim, nothing. Then what do we have next is commission. कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, वापस एक नोट बना लो कमीशन का. वर्किंग नोट टू कमीशन पेएबल. कमीशन पेएबल तो कंजाइनी कैसा देना है उसको, 10% ऑफ आईपी, 10% ऑफ गुड्स सोल्ड एट आईपी. म्हणजे काय, 10% ऑफ आईपी कितना है जो गुड्स बेचा था उसका, ये रहा हमने इधर किया हुआ है कैलकुलेट, 140625. डिड यू ऑल गेट दैट? 75% ऑफ द गुड्स था, 1.5 लाख में बेचा था, तो करस्पॉन्डिंग 75% ऑफ कॉस्ट इज 140625 which is 14063. ओके, प्लस 5% ऑफ सरप्लस अबव आईपी म्हणजे काय, सॉरी 25% ऑफ व्हाट, उसने कितना फेच किया. अगर वो आईपी फेच करता तो नो एक्स्ट्रा कमीशन. देख सब में वैसे भी हुआ था, आईपी पे ही भाई ने बेच दिया. ओके, कुछ सेल्समैनशिप वापरी नहीं, तो नो एक्स्ट्रा कमीशन. ओवरराइडिंग कमीशन उसको खास लालच के लिए दिया जाता है, भैया आईपी से ऊपर बेचोगे ना और एक्स्ट्रा 25% मिलेगा डिफरेंस का. तो उसको 25% ऑफ व्हाट एक्स्ट्रा कितना ला रहा है, 1,50,000 माइनस 140,625 का 25%, which is equal to कितना, 9 कितना आया था, 9375. कैलकुलेट कितना था 25% इसका, 2344. 2344. 2344. 2344. So total commission कितना होगा, it will be, total commission will be 2344 plus 14063. कितना आ रहा है ये, 407. 16,407. Okay, 16,407 to Kiran of Jaipur. 16,407. Okay, commission. Directly I'm writing commission. So ये हो गया आपका कमीशन. वर्किंग नोट 2 आप बता सकते हो, नहीं तो वैसे भी बनाया ही है नीचे. ओके, then corresponding effect by consignment, that is 16407. and बस आई थिंक स्टॉक वैल्यू करना है, अभी खत्म हो गया सब. रेमिटेंस ले लो, बैलेंस आ रहा है उससे, तो बाय बैंक how much are you getting, 121593. ओके, हो सकता है लॉस मतलब, असाइनमेंट में बाय पीएल आ सकता है लॉस. हाँ हो सकता है, पॉसिबल. कंसाइनमेंट में लॉस हो सकता है, ये बोल रहे हो ना तुम, हो सकता है, या कैन हैपन. खर्चे ज्यादा हो गए तुम्हारे, उसने कम प्राइस फेच किया, एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया, हो सकता है लॉस. बाय पीएनएल लॉस, यस. एंड वर्किंग नोट 3, पहले उससे पहले कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करना है, भले आईपी पे करना है, लेकिन हम पहले तो ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से ही जाएंगे. प्रोपोर्शनेट. टोटल ओरिजिनल कॉस्ट कितना था अपने को पता है, अभी 1.5 लाख था, 1,50,000. अब थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ, अपने पास यूनिट्स तो नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस यूज करो. परसेंटेज में आप बता सकते हो कितने परसेंटेज 25%. 25%. 25%. 15% ना, 15. 10% में यार लॉस हो. 15% बॉस. देखो टोटल 100% गुड्स थे, उसमें से 75% सेल हो गए,
और 10% गोडाउन में पड़े पड़े डिस्ट्रॉय हो गए, तो कितना बचा? 15% बचा ना क्लोजिंग स्टॉक में। हेलो, सब कुछ हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लिया हुआ है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू का 75% सोल्ड है, ओरिजिनल वैल्यू का 10% लॉस्ट है, तो बचा कितना? 15%। गड़बड़ मत कर देना, 15%। ऐसे भी कुछ नहीं दिया तो ओरिजिनल वैल्यू पे ही लेने का सब, ऑल परसेंटेज। ओके, सो 1,50,000 का 15% कितना होता है? 22,500 प्लस क्या करना है इसमें? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ एंजाइनर प्रोपोर्शनेट 15,000 का 15% 2250 प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंजाइनी भी आ जाता अगर होता तो। है क्या? है क्या? नहीं है। समझ में आ रही है बात? सबको समझ आ रहा है? टोटल करो कितना आ रहा है यहाँ पे? 24,750 आ रहा है। ये क्या है? ये कॉस्ट है। इस पे आप लोडिंग ऐड करोगे तो जाके आपको आईपी मिलेगा ना, ऐसे कैसे मिल जाएगा? तो लोडिंग ऐड करनी है, इसको प्रोपोर्शनेट लोडिंग ऐड करनी है, प्रोपोर्शनेट लोडिंग ऐड करनी है। तो लोडिंग जो है, टोटल कितनी लोडिंग थी अपनी? 37,500 की थी प्रॉफिट, उसमें 15% वो स्टॉक के अंदर पड़ा होगा। कितना आता है ये? 5625। तो आईपी मिल जाएगा आपको। कितना है आईपी? ऐड करो इसको, 40,000 30375 इज योर आईपी। ये आईपी क्यों चाहिए? क्योंकि आईपी पे भेजा था। लास्ट में प्रेजेंटेशन के लिए स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा आपको। 2 जगह आईपी नड़ेगा आपको, ओरिजिनल सेंडिंग में और स्टॉक रिजर्व में। तो जाओ यहाँ पे अभी आईपी पे 30375 बाय कंसाइनमेंट स्टॉक आईपी 30375 and to stock reserve profit element या लोडिंग बोलो ना, आता है 5625 and that's it. It's your profit or loss. प्रॉफिट है, लॉस है? क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट दिखाओ ना। सर लॉस है 2156। 2156 का लॉस है, तो बाय पीएनएल। बाय पीएनएल, दैट्स योर लॉस। ओके, इट कैन बी पॉसिबल, लॉस प्रॉफिट दोनों से। खर्चा सिंपल है, कोई भी बिजनेस के जैसा ये भी बिजनेस है। खर्चे ज्यादा हो गए, ट्रैक नहीं रहा, रेवेन्यू कम आया, सेल प्राइस कम फैच हुआ आपका, तो लॉस है बाकी का। क्लियर? वो लोडिंग 37,500 पर क्यों 15%? लोडिंग टोटल 37,500 है ना। ये क्या है? हर एक सब में ऐसे तो हाँ। तुमने किस पे ले लिया? 187,500 तो आईपी है। 187,500 वाज आईपी। 1.5 लाख में कॉस्ट का था, 1,50,000 का कॉस्ट का था, 187,500 में सेंड किया ना। 37,500 प्रॉफिट था ना, सेफ्टी मार्जिन पहले ही भेज दिया था उसको। स्टॉक का भी उतना प्रॉफिट एलिमेंट हमने दोनों जगह ऐड कर दिया, क्रेडिट और डेबिट में रिजर्व बता दिया यहाँ पे। ये रिजर्व तुम्हारा आरडीडी के जैसा माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में से, स्टॉक में से। बैलेंस शीट में जब स्टॉक दिखेगा ना तो ऐसा दिखेगा, ये बैलेंस शीट है, ये एसेट है, इधर दिखेगा कंसाइनमेंट स्टॉक, दिखेगा 30375 माइनस स्टॉक रिजर्व, जैसे आरडीडी दिखता है 5625, और आउटर कॉलम 24,750। दिस इज हाउ योर स्टॉक। और अगर कंसाइनी से बैलेंस लेना बाकी है तो कंसाइनी विल अपीयर लाइक योर डेटर। तो कंसाइनी दिखेगा कितना पैसा लेना बाकी है, 1215। अभी तो मिल गया, अगर मिलना बाकी होता तो 121593। ये दो ही चीजें बैलेंस शीट में दिखती हैं, द बुक्स ऑफ कंसाइनर एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में।
एक्सट्रैक्ट बाय चांस सपोज पूछ लिया तो ये दिखाने आना चाहिए। स्टॉक लेस रिजर्व एंड कंसाइनी ना बैलेंस लेना बाकी है 121,593। ओके बताओ कितना 2156 था लॉस बाय पीएनएल। जैसे एक समय पीएनएल एक्सट्रैक्ट पूछा था ना, हमने 2 एंट्रीज की थी वहां पे, ऐसे यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट पूछ सकते हैं बैलेंस शीट का। कंसाइनर के बुक में यही 2 आइटम दिखेगा, स्टॉक एंड कंसाइनी अकाउंट। लॉस ऑन कंसाइनमेंट 2156। टोटल बोल दो। टोटल सर 2157 आएगा। हाँ भाई 2157 कर टोटल दो। 236,536 236 536 532 532 236 532। तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो सब रेपिटेटिव था सम में। दैट वाज दिस द लॉस। ओके सर 234375 नहीं है? वो क्रेडिट का टोटल। अरे वो क्रेडिट का है ना, वो कम है, डेबिट हाँ बड़ा हाँ है, सर। लॉस है। क्लियर? I want you to try this sum. You to try some number 6. Sum number 6. Sixth sum. See what are they given? सर हाँ फिर इसका ऊपर वाला वर्किंग नोट दिखाओ ना। ये वाला। हाँ ये 100 यूनिट्स मत लिखना, ये खाली अंडरस्टैंडिंग। यूनिट्स पता ही नहीं अपने को। सेम सा है सर ऑलमोस्ट। यस थोड़ा अलग पार्ट है। क्या अलग है, आप सम करोगे तो आपको दिखेगा। सिर्फ इंश्योरेंस का जो है वो ना। इंश्योरेंस में गम्मत है, लेकिन यहाँ पे क्या गम्मत है वो भी पता चलेगा आपको। नेट है। क्या है? नेट। नेट। अच्छा नेट ऑफ सैल्वेज। नेट ऑफ सैल्वेज तो वो नॉर्मल है। नेट ऑफ सैल्वेज मतलब अगर कुछ सैल्वेज बच गया तो उसको काट के आपको इंश्योरेंस मिलेगा। जैसे 12,500 के गुड्स गए थे, 500 रुपया कुछ बेचने लायक रहेगा तो इसके जगह आपको इंश्योरेंस खाली 12,000 ही दिया कंपनी ने। नेट ऑफ सैल्वेज वो हमेशा नेट ऑफ सैल्वेज ही होता है। कॉस्ट से ऊपर का क्लेम होगा। हाँ क्लेम आपको ज्यादा मिल रहा है, थोड़ा प्रॉफिट होगा यहाँ पे। अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट के अंदर पहले आपको अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंसाइनमेंट क्रेडिट में वही जाएगा। उसके बाद अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाओगे ना तो नेट थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, शायद प्रॉफिट हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, शायद थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है। क्लेम सर बट ज्यादा नेट ऑफ सैल्वेज मतलब जितना बेचा उतना ही मिला ना। 12,500 का लॉस हुआ, 12,000 मिल गया तो 500 बेचा रहेगा ना। हाँ लेकिन वो बेचने का अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कितने में बिकेगा। कंपनी को लग रहा है कि ये बिक जाएगा, ऐसा अपने को अज्यूम नहीं करने का, अपने को खाली क्लेम वैल्यू लेने का। हाँ अपने को सेल वैल्यू दिया है कि हाँ इतने में बेचा तो फिर विल सेल दैट एंड विल एक्चुअली कैलकुलेट इट। ऐसा लॉस के ऊपर आएगा क्लेम तो ये प्रॉफिट। कंसाइनमेंट क्रेडिट साइड लॉस ही निकालने का है। लिखने का कैसे है? बाय अबनॉर्मल लॉस करना है और अभी जैसे लिखा पूरा है। क्लेम दिखा देना है। क्लेम का कुछ नहीं करेगा। क्लेम का कुछ नहीं, वो क्लेम मेथड यहाँ पे नहीं कर सकते आप, क्लेम ज्यादा हो रहा है ना, दैट यू सो दैट मेथड इज नॉट पॉसिबल। डेबिट साइड पूरा क्लेम दिखा सकते हैं ना, तो नेट प्रॉफिट मिलेगा मतलब। वो हाँ वो अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में दिखेगा। सर लास्ट सम Consignment का account- फर्स्ट वर्किंग नोट दिखाओ ना। यही है सामने। अच्छा नीचे का ये वाला
abnormal loss का. आपने वो सब नहीं दिखाया कि आपने इनवॉइस प्राइस कैसे कैलकुलेट किया और वो सब. ये क्या है ऊपर, ये बताया ना. ये शुरुआत में ही किया ना हमने. हाँ सर हो गया सर. बढ़िया है. पहले तो आईपी वगैरह ढूंढो, कॉस्ट ढूंढो, जैसे हमने किया है यहाँ पे. ट्राई टू कैलकुलेट दैट. अबनॉर्मल लॉस का वापस मैं बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है. See now. Sum number 6. 6 में भी राम कहानी अभी तक तो सबको पता चल. सिमिलर सम है. सो अपने को हिंट कहाँ से पकड़नी है? अबनॉर्मल लॉस से. तो कितना वैल्यू का गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एट दिल्ली गोडाउन? तो आई थिंक 12,500, राइट? सो 10% ऑफ गुड्स इज अबनॉर्मल लॉस. बराबर है. So is it 10% of IP या 10% of cost? And that is the question. Cost. आईपी आईपी अभी तो किया यार, सामने कंजाइनी के गोडाउन में गया है तो आईपी का ही रहेगा. So 10% of IP which is 12,500. 10% of IP, 10% of goods are destroyed. So that is 12,500. This 12,500 is IP. So what is total IP? Total IP is equal to 12,500 into 100 by 10, which is 1,25,000. अब ये मिल गया तो कॉस्ट भी ढूंढ सकते हो. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज IP. स्टार्टिंग में जो भेजा है हमने उसको. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज IP का मतलब 100 रुपीज का गुड्स उसने क्या भाव पे कंजाइन किया था? 125, मतलब 25% प्रॉफिट. ये 125,000 है IP. तो कॉस्ट कितना? 1 लाख. ये मिला आपको. टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 1 लाख. एंड फिर इसके आगे हम लोग ये तीनों प्राइस ढूंढ सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग कमीशन. CP, IP, SP. कितना गुड्स उसने सेल किया है? 1 लाख रुपीज में सेल किया. 1 लाख का नहीं, 1 लाख में सेल किया. वो 1 लाख represents the selling price, which is 75% of the goods का selling price. So what's your corresponding IP and what's your corresponding cost? Corresponding IP should be 125,000 का 75%. 93750. And corresponding CP 75,000. 1 लाख का 75%. Corresponding CP नहीं भी ढूंढा तो भी चलेगा. मैंने पहले भी बताया था आपको, ये ऑप्शनल है. मेन तो आपको IP चाहिए और SP चाहिए करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स के लिए फॉर योर कमीशन. CP तो खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए. भैया 75 के कॉस्ट के गुड्स थे जिसकी IP 93,750 थी और जिसको भाई ने 1 लाख में बेचा. इज ए गुड सेल्समैन? यस, नो, यस, ऑब्वियसली. IP पे भेजा था भाई ने, मेहनत की और 1 लाख रुपए फेच किए. ठीक है, एक्स्ट्रा कमीशन भी हम देंगे उसको. ड्रॉ कर लो अकाउंट्स. इसमें खाली अबनॉर्मल लॉस का थोड़ा सा ध्यान देना है. एंट्री भी कैसे करेंगे? हम अपने पुराने तरीके से करेंगे, अबनॉर्मल लॉस दिखा के. कमीशन, इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पे नहीं दिखाना है. इंश्योरेंस क्लेम सीधा अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में दिखाएंगे. सी इन द बुक्स ऑफ Ajay of Mumbai,
consignment account. Okay, books of Ajay of Mumbai consignment account. Start with the goods sent on consignment. IP पे भेजा है तो 2 goods sent on consignment. क्या दिया है पढ़ो. Ajay of Mumbai consigned to Vijay of Delhi to be sold at invoice price, which represents 125% of cost. So total invoice price we already calculated, that came to 125,000, and it include profit. So we are supposed to reverse that. So buy goods sent on consignment account, the loading part, we remove it, we reverse it to 1 lakh, crediting the profit of 25,000. Okay, and then there is commission. Commission will do it at the end. Expenses on freight and insurance of Ajay were 10,000. We are only Ajay, so consignment to bank, we are paying that 10,000 for freight and insurance. Then account sales reveal shows that the sales are of 1 lakh. So ये सामने वाले पार्टी ने किया है. By Vijay of Delhi, sales are 1 lakh. It's your sale value, and his selling expenses to be reimbursed were 8,000. So to Vijay of Delhi, selling expense of 8,000, and I also recorded 10% of the goods are lost. अभी abnormal loss का calculation, working note 2, 3, 4 या लास्ट में उसको ऊपर वाले को 4 बता देना. Abnormal loss at cost price. Abnormal loss हमेशा CP पे वैल्यू होगा. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे? We know the IP, which is 12,500. So corresponding cost will be what? 12,500 into 100 upon 125, which is 10,000. This is the original cost. क्या यही लिख दूं consignment credit में 10,000 as my cost price of consigned goods lost? Tell me. Should I write the same value 10,000? No. I have to add what? I have to add proportionate non-recurring expense of consignor and proportionate non-recurring of expense of consignee if at all they were present in the sum. Okay, but they aren't क्योंकि गोडाउन में जाके लॉस हुआ. So plus non-recurring expense of consignor, उसका कितना खर्चा हुआ था? 10,000 रुपया हुआ था. 10,000 का भी 10% ले लो ना, तो कितना होता है? 1,000 रुपया. तो ये मिल गया आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट. आईपी नहीं चाहिए भैया, कॉस्ट चाहिए. कॉस्ट इधर ध्यान रखना है. अब नॉर्मल लॉस एट कॉस्ट. अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी होता तो वो भी ऐड हो जाता क्योंकि गोडाउन में गुड्स लॉस्ट हो जाती है. नहीं तो इग्नोर मारो. अब इसको रिकॉर्ड करना है ना. क्लेम कितना मिला है आपको? व्हाट इज द क्लेम? Claim is 12,000. Can you see that? Paid है, मतलब received claim है. पे कंसाइनमेंट अकाउंट में आप क्लेम नहीं दिखा सकते. यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस ही दिखाना. नॉर्मली आप दिखा सकते हो टुकड़ा करके, क्योंकि अगर जनरली क्लेम कम आता है ना आपको गुड्स के वैल्यू से. 1,000 के गुड्स लॉस हुए तो 700 का क्लेम आता है. तो अब बाय अब नॉर्मल लॉस 300 एंड बाय क्लेम 700 ऐसा भी दिखा सकते थे. पर यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे आप 12 से क्रेडिट नहीं कर सकते. कैनॉट क्रेडिट कंसाइनमेंट अकाउंट बाय 12,000 रुपीज. तो यहाँ पे आपको ये अबनॉर्मल लॉस ही निकालना है. कॉस्ट निकालना है यहाँ से. बाय abnormal loss account, remove the cost, okay, of abnormal loss, which is 11,000. Now just for your understanding, I'm showing you abnormal loss account also. नीचे एक abnormal loss account बना रहा हूँ मैं. हम छोटा सा ही रहेगा. ये abnormal loss account ऐसे दिखेगा. abnormal loss account में जाएगा to consignment account. कंसाइनमेंट अकाउंट 11,000. बाय बैंक क्योंकि क्लेम रिकवर हो चुका है 12,000. एंड टू पीएनएल. दिस इज योर अबनॉर्मल प्रॉफिट.
दिस इज नॉट योर नॉर्मल प्रॉफिट, इसलिए मैंने उसको कंसाइनमेंट में से अलग ही दिखाया है। 2 PNL 1000 रुपया हर बार होने वाला नहीं है, जैसे लॉस अब नॉर्मल है वैसे इसका प्रॉफिट भी अब नॉर्मल है। इसको कंसाइनमेंट में नहीं दिखाने का, रिमूव इट फ्रॉम योर कंसाइनमेंट, शो इट अंडर योर PNL। सर रेयरली होगा जब आपने गोडाउन में जाके वो कुछ डिस्ट्रॉय हो गए गुड्स, तो क्योंकि ऑटोमेटिकली इसका कॉस्ट कम था तो ज्यादा प्राइस पे इंश्योर हो चुके थे, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अदरवाइज प्रॉफिट चांस इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ इंश्योरेंस। So that's your abnormal loss 11,000, और उसके बाद उसका कमीशन, has anyone calculated the commission? Please tell me. To 10,938. Vijay of कमीशन, मैं इधर ही बता रहा हूँ कैलकुलेशन, अब चाहिए तो वर्किंग नोट बना के दिखा सकते हो। कमीशन कितना देना है उसको, 10% ऑफ आईपी है ना, 10% ऑफ आईपी है, तो 10% ऑफ सेल्स एट आईपी, 10% ऑफ कितना था 93,750 which is 9375 प्लस एडिशनल 25% ऑन सरप्लस, 25% of what, 1 lakh minus 93,750 which is 6250 का 25% 1563 1563, 25% of 6250 1560, 1560 plus 937 का कितना 12 10 938 10938, that's your commission. And stock, इसका नोट बनाना, कंसाइनमेंट स्टॉक का, कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे करना है कैलकुलेट, सेम वे से करना है, ओरिजिनल कॉस्ट 20250 एक ही सेकंड, टोटल खर्चा हुआ था 1 लाख, अभी कितना परसेंटेज गुड्स है बताओ मुझे, 25%, 15%, 10% स्टॉक में, बोलो 15%, लास्ट सम के जैसा ही है। 100 में से 10% डिस्ट्रॉयड, 25% सोल्ड, तो बचा 15%। ओके, 15% ऑफ कॉस्ट दैट इज 15,000 प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर which is 10,000 का 15% which is 1500। अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइन नहीं होता तो लेते क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में कि नहीं? लेते, जरूर लेते, लेकिन है ही नहीं तो छोड़ दो। और प्लस करना है क्योंकि भैया आईपी का लफड़ा है सब में, लोडिंग टोटल लोडिंग कितनी थी अपनी 25,000 थी, है ना, आईपी माइनस कॉस्ट 25,000, 1 लाख का एक 25 में गया था, 25,000 का 15% कितना होता है 3750, टोटल कितना होता है 20,250, 20250, करेक्ट 20250। बस अब चले जाओ वापस कंसाइनमेंट में और रिकॉर्ड कर दो 20250, दिस इज एट आईपी एंड योर लोडिंग के लिए क्रिएट अ स्टॉक रिजर्व ऑफ ना था 3750। प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है? लॉस एक ही सेकंड ना, बाय पीएनएल कितना आ रहा है लॉस? 1438 1438 1438। और कंसाइनी का अकाउंट बना लो और मुझे बताओ क्या हो रहा है वहां पे नेट रेमिटेंस, कंसाइनी के अकाउंट में रेमिटेंस बता देना क्या हो रहा है। सब वर्किंग नोट पूरा समय देख लो स्क्रॉल करो ना नीचे। और अच्छा ये सर वाला रेमिटेंस है 81,062। रेमिटेंस है 81,062, मिल रहा है सबको 81,062, प्लीज चेक। कंसाइनी अकाउंट बना लेना करस्पॉन्डिंग एंट्री करके 81,062, रेमिटेंस इज 81,062। Is that clear?
क्या अलग था सम में, समझ में आया? यहाँ पे खाली पजल टाइप का सम था, कुछ ना कुछ हिंट होगा, अटकोगे नहीं, कभी टेंशन नहीं लेने का। ओके, पेपर में कुछ भी ऐसा आ जाए समझो, ट्रिकी विकी कुछ भी, so डोंट वरी, हिंट इज देयर। वो सोच समझ के क्वेश्चन फ्रेम किया है ना, 2 लाख लोगों का एग्जाम ले रहा है पैन इंडिया, ICAI, बेइज्जती नहीं करवाएगा अपनी, तो कुछ ना कुछ हिंट होगा क्वेश्चन, इसे आपको ढूंढना है, सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़िया। आगे सर फाइनल रेमिटेंस कितना था? 81062 है ना, 81062, 81062। नाउ सर कंसाइनमेंट अकाउंट जूम इन करो। जम रहा है अभी कंसाइनमेंट, ग्रिप आ रहा है, ऐसा लग रहा है इजी, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, मीडियम? वेरी इजी तो नहीं है, नॉट लाइक ADD अकाउंट करंट। ADD अकाउंट करने का मजा आता है ना, टाइम पास है, उसमें भी गड़बड़ किया पेपर में, लो क्या महान है। अकाउंट करंट में गड़बड़, ADD में लास्ट क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, 3 क्वेश्चन पढ़े, भाग गए सब लोग, स्कूल की बेल बजी वजह से। 4 क्वेश्चन पूछे थे मैंने ADD में 5 मार्क के लिए। वंदित अभी देख रहा है मेरा छूटा है क्या। 5 में से 4 क्वेश्चन में से 3 अमाउंट थे तुम्हारे, ऑन ADD, बिफोर ADD, आफ्टर ADD, और एक चौथा वाला भी पूछा था, अगर उसको इतना इंटरेस्ट सेव करना है तो कितना, कौन से डेट पे पेमेंट होगा, ये खा गए, काफी लोग खा गए, काफी लोग। अब आउट ऑफ 42 पीपल अप्रोक्स 15-20 लोग खा गए वो लास्ट क्वेश्चन। क्या घाई था, क्या मालूम क्यों नहीं देखा। और रिबेट में माइनस करना होता है, इंटरेस्ट में ऐड करना होता है, किसी भाई ने उल्टा कर लिया, रिबेट ऐड कर लिया, इंटरेस्ट माइनस, कैलकुलेशन सब परफेक्ट किया, फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करते हुए रिबेट माइनस करना है तो ऐड कर दिया, इंटरेस्ट माइनस, इंटरेस्ट ऐड करना है तो माइनस कर, ADD के आगे पे करोगे तो इंटरेस्ट ऐड करते हैं ना, तो माइनस कर दिया, पहले करोगे तो रिबेट माइनस कर दिया, ऐसा उल्टा कर दिया। ADD अकाउंट करंट में गड़बड़ करते हो यार। किसी ने करंट अकाउंट करंट में बाय बैलेंस BD का टू बैलेंस BD लिख दिया और सॉल्व कर दिया, खत्म। उधर अकाउंट करंट का गड़बड़ किया है, सिली मिस्टेक्स हो गया। ऑलमोस्ट सब पेपर्स करेक्ट हो चुके हैं, हाईएस्ट इज 95, जेनिल का ही है 95। कितना था जेनिल? 95.5 था, 95 था उस दिन अपन देखा था, 95 देखा था। 95 जेनिल स्कोर हाईएस्ट 95। बाकी है 90 प्लस पे हैं, 6-7 लोग हैं 90 प्लस पे, 89 90 के आजू बाजू भी हैं, लोगों ने बहुत बुरा भी किया है। बिलो 80 अब बहुत खराब, बिलो 70 बहुत ज्यादा खराब, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत। 80s में इट इज स्टिल फाइन, कैन कवर अप। चलो हो गया। नाउ क्वेश्चन जो हमने कल कंसाइनी का थोड़ा बहुत देखा था, ट्रांजैक्शंस इन द लास्ट लेक्चर, लेट्स फोकस ऑन दैट। कंसाइनी के बुक्स में बेसिकली कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं? 4 ट्रांजैक्शन आते हैं गिन चुन के, इंपॉर्टेंट वाले।
एक होता है सेल, एक होता है एक्सपेंस उसका, एक होता है उसका कमीशन, एक होता है रेमिटेंस, ठीक है। इसको छोड़ के थोड़े बहुत और एंट्रीज आ सकते हैं कंसाइनी के बुक में, जैसे कि बैड डेट्स। तो हम लोग थोड़ा वो एरिया पे फोकस करते हैं। यू टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को कंसाइनी का बुक में पूछा हुआ है। हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन 1 किया हुआ है, एक्स लिमिटेड वाला, सेम क्वेश्चन है। एक्चुअली वो 2 बार करवा दिया उधर प्रिंट। तो एक्स लिमिटेड वाला सेम क्वेश्चन है, उधर कंसाइनर के बुक में हमने सॉल्व किया है, जर्नल लेजर दोनों किया हुआ है। अभी वही अपन कंसाइनी के बुक में करते हैं, जर्नल प्लस लेजर। उधर कमीशन भी है, बैड डेट्स भी है, कैसे करने का है देखते हैं हम लोग। तो पहले लेजर बना लेते हैं, उसके बाद जर्नल करते हैं। क्वेश्चन 2 कौन सा अकाउंट बनाना है देख लो के बुक्स में। अभी बनाने के लिए तो पूरी लंगर है, बनाने के लिए जितने बनाने बना सकते हो, बट जनरली एज आई टोल्ड यू, अगर कुछ नहीं दिया तो कंसाइनी के बुक में एक ही अकाउंट होता है, दैट इज कंसाइनर्स अकाउंट। इंपॉर्टेंट वाला एक ही है, ठीक है। छोटे छोटे और अकाउंट क्या बन सकते हैं, बैड डेट अकाउंट बनेगा एक, कमीशन अकाउंट, डेल क्रेडिट कमीशन या कमीशन अकाउंट दिया तो कमीशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। और दैट्स इट। पीएनएल ट्रेडिंग एक्सट्रैक्ट अगर पूछा है तो, सॉरी का कोई अकाउंट बन सकता है? कौन सा अकाउंट? एक्सपेंस जो पे करता है वो बैंक अकाउंट बनेगा ना, उसका तो एक्सपेंस हेड कुछ है नहीं। बैंक अकाउंट वो सब छोटा छोटा, वो सब जनरल अकाउंट्स है। कंसाइनमेंट रिलेटेड खाली कंसाइनर्स अकाउंट, बैड डेट्स एंड कमीशन, वो भी तब जब बैड डेट्स हो। अब तक के कोई समय बैड डेट्स हुआ ही नहीं था, तो बैड डेट्स कमीशन दिखाने की जरूरत नहीं है, खाली कंसाइनर अकाउंट काफी है। बट अगर स्पेसिफाई करके दिया है कि ये बनाओ या नेसेसरी बनाओ, तो 3 अकाउंट आप बना सकते हो, बैड डेट्स, कमीशन एंड कंसाइनर्स अकाउंट, और कंसाइनमेंट डेटर इन केस ऑफ बैड डेट्स। एक छोटे छोटे अकाउंट में बताता हूँ आपको, इजी है सब, एक लाइन के अकाउंट्स हैं। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, सर ये क्वेश्चन 1 का ही सब है ना? हाँ, क्वेश्चन 1 का डिटो सम है। उसका सॉल्यूशन देख लो आप, उसका सॉल्यूशन रखो सामने, तो आपको वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन 1 एक्स वाई लिमिटेड, आपके पास सॉल्यूशन होगा, रिमूव दैट एंड कीप इन द बुक्स ऑफ वाई, इन द बुक्स ऑफ वाई एक्स अकाउंट। ओके, देखो सबसे पहला मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। X sent on 1st July 2016 to Y goods costing 50,000 and spent 1,000 on packaging. Will Y have any entry for this in his books? Yes, no, maybe. No. On 3rd July, Y received the goods and sent the acceptance. ये advance है, advance की entry आती है, right? What is the entry for advance for कंसाइनी? क्या होगी entry? X to bill पेबल। अभी इधर देखो बिल्स पेबल दे दिया है, बिल्स पेबल अकाउंट भी कोई बना लेते हैं। ऐसा एक लाइन के बहुत सारे अकाउंट है, इसलिए मैंने आपको बोला ब्रॉडली 3 इंपॉर्टेंट है, कंसाइनर, बैड डेट्स, कंसाइन डेटर वगैरह भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसाइनर्स अकाउंट, बैड डेट्स एंड कमीशन अकाउंट, सॉरी कंसाइनर अकाउंट, बैड डेट्स एंड कमीशन अकाउंट, दैट्स इट। ओके, अगर बैड डेट्स कमीशन है तो, बैड डेट्स क्रेडिट कमीशन तो, नहीं तो एक ही अकाउंट काफी है। तो इधर बीपी अकाउंट, दिस इज एडवांस 30,000, देन फॉर 3 मंथ्स। अब ये 3 महीने के बाद ऑनर भी हुआ होगा ना, तो ऑनर की क्या एंट्री होगी इसकी? BP to bank, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा ना, बैंक अकाउंट ना बीपी अकाउंट। देन on 3rd July, okay, Y spent 2,000 on carriage and freight. Y मतलब हमने उसका एक्सपेंस पे किया, तो कंसाइनर टू बैंक 2,000 फॉर कैरेज एंड फ्रेट। ओके, देन कार्टेज गोडाउन, अच्छा आगे बहुत कुछ है। ओके, कार्टेज गोडाउन रेंट इंश्योरेंस सब मिला के कितना हो रहा है? 2,800। On 31st December he sent the account sales on 4/5 of the goods were sold. तो मैंने उसका इनकम रिसीव किया, तो एंट्री क्या होगी?
बैंक टू कंजाइनर, अब तक हम लोग ये करते थे, राइट? अभी ये क्वेश्चन में आपको बैड डेट्स दिया हुआ है, कैन यू सी दैट 600 रुपया बैड डेट्स हुआ है। तो बैड डेट्स कब होगा, थोड़ा दिमाग लगाने का, कैश सेल्स में बैड डेट होता है कि क्रेडिट सेल में बैड डेट होता है? क्रेडिट सेल में होता है, ठीक है। तो अज्यूम करने का कि गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ओके। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग बैंक टू, देखो नॉर्मल एंट्री क्या होती है आपकी, बैंक टू सेल होती है ना, बैंक टू सेल के जगह यू राइट बैंक टू कंजाइनर, क्योंकि मैंने उसका इनकम रिसीव किया है ना। तो वैसे ही क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल, तो डेटर टू सेल के जगह डेटर टू कंजाइनर। तो कंजाइनर में खाली बाय बैंक के जगह बाय डेटर लिख देने का, अज्यूम इट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो दिस इज 55,000, these are sales, debtor to डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं ना, 600 क्रेडिट पे और बाकी सब बैंक पे। खाली 600 क्रेडिट पे होने का सवाल थोड़ा वियर्ड assumption है। यू कैन राइट इधर ही, यू कैन राइट बाय बैंक स्लैश डेटर तो चलेगा। 55,000 में यू कैन शो इधर ही, जैसे कल मैंने बोला तुमको टू बैंक स्लैश सर वैसे बाय बैंक स्लैश डेटर। या सर ये जो 2800 है वो तो एक्सपेंसेस एक्स के ही है ना? हाँ एक्स के ही है, लेकिन वाई पे कर रहा है ना, ऐसा दिया ना, वाई स्पेंट 2000 ऑन फ्रेट एंड कैरेज। तुम अपना एक्सपेंस पे करोगे तो एक्सपेंस टू बैंक, तुम किसी और का पे करोगे तो पार्टी टू बैंक। तो एक्स का ही है। हाँ एक्स का ही एक्सपेंस है, लेकिन वाई पे कर रहा है ना, हम लोग वाई के बुक्स में लिख रहे हैं अभी। सिंपल सा लॉजिक, मैं तेरा एक्सपेंस पे करता हूँ तो मैं क्या एंट्री मारूंगा, एक्सपेंस टू कैश नहीं, योर अकाउंट डेबिट टू कैश ना, यू आर माय डेटर, मैं तेरे से वसूलेगा ना वो पैसा, मुझे तेरे से लेना बाकी है, इसके लिए मैंने को डेबिट किया। तो वाई एक्स के बिहाफ पे कर रहा है, तो वाई हैज टू रिसीव दैट मनी फ्रॉम एक्स। वाई के लिए एक्स का अकाउंट कैसा है, पर्सनल अकाउंट कैसा दिख रहा है, डेबिट में जो अमाउंट है ना वो वाई हैज टू रिसीव फ्रॉम एक्स, एंड क्रेडिट में जो अमाउंट है दैट वाई हैज टू पे टू एक्स। हाँ इसके लिए हमने उसका अकाउंट डेबिट टू कैश मार दिया, फिर जब पैसा आ जाएगा तो कैश टू एक्स सेटल हो जाएगा ना वैसा। देन 10% कमीशन था, कितना था कमीशन जरा देखो बढ़ाओ उधर, 5,500। so x to commission, party to income receivable to income 5,500, this is commission, okay। देन बैड डेट्स हुए, अब सोच के बताना क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन है कि नहीं है, देखो वहां पे, डू यू हैव एनी डेल क्रेडिट कमीशन इन द क्वेश्चन? नो। अगर देखो हमने ये कंजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा हुआ है ऑलरेडी, लेट्स थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंजाइनर फर्स्ट, लेट्स रिवाइज दैट। कंजाइनर अगर आप हो और अगर आपने डेल क्रेडिट कमीशन अलाउ किया है, डेल क्रेडिट कमीशन अलाउ किया है, तो बैड डेट्स की जिम्मेदारी किसकी हुई? कंसाइनी की हुई। तो इन दैट सिचुएशन विल यू हैव एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर? नो। यू आर अब्सॉल्व्ड ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज तुमने उसको दे दिया, कमीशन दे दिया ना, डेल क्रेडिट मलाई मिल रही है ना उसको एक्स्ट्रा, तो क्यों दे रहे हो? वही रीजन से दे रहे हो कि वो नुकसान बेयर करे खुद ही, कंसाइनी बेयर करे। तो कंजाइनर के बुक में नो एंट्री। लेकिन अगर कंजाइनर ने डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया, खाली नॉर्मल कमीशन दिया, डेल क्रेडिट कमीशन एक्स्ट्रा मलाई नहीं दी, तो फिर हु बेयर्स द लॉस ऑफ बैड डेट्स? कंजाइनर बेयर्स इट, राइट? कंजाइनर बेयर्स इट। तो कंजाइनर के बुक में क्या एंट्री आती थी, याद है आपको? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, मेरा एक्सपेंस वो पे कर रहा है। वो दो सिचुएशंस याद है आपको कंजाइनर की? अगर डेल क्रेडिट अलाउ किया तो नो एंट्री, अगर अलाउ नहीं किया तो कंसाइनमेंट टू कंसाइनीज अकाउंट, सिंपल। अभी कंसाइनी के बुक्स में आते हैं, ठीक है? कंसाइनी के बुक्स में हम लोग कंसाइनी के बुक्स में, और ये सम के एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं। ये सम में डेल क्रेडिट कमीशन था कि नहीं था? नहीं था। तो इसका मतलब जो बैड डेट्स हुए हैं वो किसको बेयर करना पड़ेगा, किसका एक्सपेंस गिनाया जाएगा? कंसाइनर का गिनाया जाएगा, राइट? कंसाइनर का। अब मैं आपको दोनों सिचुएशन यहाँ पे बता रहा हूँ सॉल्व करके। देखो कंसाइनी जो है अपने डेटर से पैसा कलेक्ट करने गया,
तो नॉर्मली कैसे होता है, नॉर्मली ऐसे एंट्री होती है अपनी, डेटर टू सेल्स, समझो तुमने बिजनेस में सेल किया 55,000, नॉर्मल बिजनेस बता रहा हूँ, कंसाइनमेंट का नहीं, नॉर्मल। डेटर टू सेल और बैड डेट्स की क्या एंट्री होती है, बैड डेट्स टू डेटर, है ना, मालूम है ये। और फिर ये बैड डेट्स कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, पीएनएल एज अ लॉस, करेक्ट। अब यही चीज कंसाइनी कैसा करेगा, इन द कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, कंसाइनी के बुक में कैसा दिखेगा, डेटर टू सेल, डेटर टू सेल के जगह वो क्या मारेगा, डेटर टू कंसाइनर, क्योंकि भैया उसका इनकम तो है नहीं, कंसाइनर के बिहाफ पे कर रहा है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बाय डेटर वहां पे दिख रहा होगा आपको 55। फिर बैड डेट्स टू डेटर, ये दोनों अकाउंट उसके बुक में दिख रहे हैं, डेटर अकाउंट दिख रहा है उसके पास, करेक्ट। अब आता है गम्मत का पॉइंट, ये बैड डेट्स क्या उसका पर्सनल एक्सपेंस है, ये अगर उसको डल क्रेडिट कमीशन मिल रहा होता ना तो उसका एक्सपेंस होता, तो फिर ये एंट्री कर देता कंसाइनी, पीएनएल टू बैड डेट्स, खुद का एक्सपेंस में डाल देता उसको। लेकिन यहां पर ये बैड डेट्स उसका पर्सनल एक्सपेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि डेल क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो कंसाइनी क्या बोलेगा, मैं तो ये कंसाइनर के बिहाफ में किया था, मैं क्यों भुगतूं, मेरे पीएनएल में क्यों डालूं, इधर मैं डाल दूंगा कंसाइनर के डेबिट में। तो मैं क्या करूंगा, कंसाइनर टू बैड डेट्स, कंसाइनर टू बैड डेट्स। आप एक्चुअली देखोगे ना तो नेट इफेक्ट यही है, बैड डेट्स कट हो रहा है, नेट इफेक्ट इज कंसाइनमेंट टू डेटर। क्यों कंसाइनमेंट टू डेटर आया, देखो नॉर्मल एक्सपेंस जब कंसाइनी पे करता है तो क्या एंट्री करते हो, कंसाइनी ने गोडाउन रेंट पे किया, कंसाइनी ने इंश्योरेंस पे किया, कंसाइनी ने सेलिंग एक्सपेंस पे किया, क्या एंट्री करते हो आप, कंसाइनर टू एक्सपेंस पे किया, उसकी क्या एंट्री, अरे हाँ, टू बैंक, उसका एक्सपेंस मैंने पे किया, तो कंसाइनर टू बैंक करते हो ना, उसका एक्सपेंस वो डेबिट, पैसा मेरा गया, एसेट गोज आउट, एसेट कम हुआ, क्रेडिट। तो यहां पर एसेट कम हो रहा है बट क्या रोकड़ा नहीं जा रहा है, डेटर कम हो रहा है, तो नेट एंट्री तुम्हारा कंसाइनर टू डेटर है, नॉन कैश एक्सपेंस है इसके लिए, यही बात। तो ये थोड़ा डायरेक्ट हो जाता है, इस बैड डेट्स दिखता नहीं है, तो थोड़ा इंफॉर्मेशन बैड डेट्स का दिखाने के लिए वी शो बैड डेट्स अकाउंट ऑल्सो। इसको दो टुकड़े में डिवाइड करना है, पहले बैड डेट टू डेटर, और फिर अगर पर्सनल बेयर करना है, अगर डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है तो पीएनएल टू बैड डेट, खुद का पीएनएल में डाल देगा। लेकिन अगर डेल क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो उसका खुद का एक्सपेंस नहीं है, कंसाइनर के बिहाफ पे कर रहा है, तो क्या एंट्री करेगा, कंसाइनर टू बैड डेट, कंसाइनर के अकाउंट में बैड डेट ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कंसाइनर डेबिट हो गया, मतलब आइदर वो ऐसा सोचेगा कि उससे पैसा लेना है या भी उसको कम पैसा देना है, बैड डेट अमाउंट काट लेगा, दैट वे विल थिंक, दैट इज द लॉजिक ऑफ डेबिटिंग कंसाइनर। So when you post it, you will get it more clearly. When you post it, यहाँ पे consignor में you will write 2 bad debts. Consignor में you will write 2 bad debts 600. ये bad debts है। अब आप इधर देखोगे ना तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। 55,000 क्रेडिट में, मतलब उसको देना बाकी है, -30 ये ऑलरेडी दे दिया एडवांस, -2,800 क्योंकि उसका एक्सपेंस पे किया, -5,500 कमीशन अपना काट लिया, -600 का लॉजिक क्या है, अपना एक्सपेंस है कि उसका एक्सपेंस है बैड डेट, कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उसका है। जैसे बाकी ये कैश एक्सपेंस था ना, ये कैश एक्सपेंस था, वैसे ये नॉन कैश एक्सपेंस, लॉजिक सेम है, मैंने कंसाइनर का एक्सपेंस पे किया, मैं उसको कम पैसा देगा, खाली एंट्री में हमने क्या किया है, एक बैड डेट अकाउंट के थ्रू एक्स्ट्रा एंट्री पास कर दिया। पहला डेटर टू सेल के जगह डेटर टू कंसाइनर, उसको देना बाकी है, उसकी इनकम है। फिर बैड डेट टू डेटर, दोनों अकाउंट है अपने पास, बैड डेट अकाउंट बताओ, जरूर बताना, अगर बैड डेट है सब में तो कंसाइनी के बुक में दिखाओ बैड डेट को। और फिर बैड डेट टू डेटर के बाद डोंट ट्रांसफर दैट बैड डेट टू पीएनएल। अच्छा, व्हेन विल कंसाइनी ट्रांसफर द बैड डेट टू पीएनएल? When del credit commission is allowed, that time he will treat it as his own expense, right? That time he will treat it as his own expense, so it will go to PNL. So PNL to bad debts. Then will it appear in consignor's account on top? Will it appear over here 600 rupees? No.
then he will have to remit the full amount, 55 minus advance minus expense minus commission. Then there is no concession of bad debts. But in this situation, the consignor is not giving any del creditor commission. So obviously consignee क्यों bear करेगा bad, क्यों अपने P&L को डेबिट करे, क्यों अपना लॉस दिखाए? तो कंसाइनर के बिहाफ पे किया था, तो ले उसको डेबिट कर, उसको कम पैसा मिलेगा अभी, वो 600 रुपया अभी कम देगा कंसाइनर को. दैट इज द मीनिंग. तो दो वेराइटी, दो वेरिएशंस हैं. either del creditor is allowed, either del creditor is not allowed. अभी कंसाइनी के बुक्स में del creditor allowed, del creditor not allowed. कंसाइनर का हमने देखा ना अभी कंसाइनी के बुक्स में del creditor allowed, del creditor not allowed. ठीक है, all of you with me? Del creditor allowed in the books of consignee. If del creditor is allowed, so who bears that bad debts? तो ऊपर का दो एंट्री सेम रहेगा, डेटर टू कंसाइनर सेम रहेगा, बैड डेट टू डेटर भी सेम रहेगा. तीसरा एंट्री क्या हो जाएगा अगर डेट क्रेडिटर अलाउ किया है तो? डेट क्रेडिटर अलाउ किया तो तीसरा P&L to bad debts. P&L to bad debts. Got it? क्योंकि खुद का पर्सनल में चला जाएगा ना, खुद बेयर करेगा. और अगर डेट क्रेडिटर अलाउ नहीं किया एज इन दिस सिचुएशन दिस सम, then consignor to bad debt. consignor to bad debts. Instead of P&L to bad debts, it will be consignor to bad debts. Is that clear? समझा ये लॉजिक, समझा लॉजिक. उसके बिहाफ पे किया है, नॉन कैश है, इसके लिए खाली बैड डेट्स अलग से ओपन करके दिखा रहे हैं. एक्चुअली नेट इफेक्ट इज कंसाइनर टू डेटर ओनली. टू कैश था ना, कैश कम हो रहा था एसेट तो उसको क्रेडिट किया, डेटर कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट किया. नॉन कैश है, अभी कुछ गुड्स लॉस्ट हो जाएगा समझो, तो भी वो कंसाइनर टू इधर ही जाएगा. उसके समझो कुछ और एसेट जा रहे हैं, गुड्स का एंट्री किया है तो ले के बाद में लॉस हुआ है तो वो वहां पे दिख जाएगा. कोई और एसेट जा रहा है, इसके लिए हमने एसेट को क्रेडिट किया. सिंपल एज दैट. बात है आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे. कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर अकाउंट, बैड डेट्स हुआ है तो कंसाइनर में ट्रांसफर करो, नहीं हुआ है तो P&L में ट्रांसफर करो. और बाकी रेमिटेंस ढूंढो कितना आ रहा है टू बैंक. सेम आएगा, कितना है वहां पे? 16,100. 16,100. That's it. 16,100 रेमिटेंस. ये बात गई दिमाग में सबके? अभी इसमें अकाउंट कौन से बनाना है? देखो एक तो ये अकाउंट बनाया मैंने, अब छोटे छोटे अकाउंट में और बता रहा हूँ आपको. बैड डेट अकाउंट भी बता रहा हूँ, शायद कहीं पूछ लिया तो ये भी बता देना. आने का चांसेस नेग्लिजिबल है. क्या रहेगा एंट्री बैड डेट्स में बताओ? बैड डेट्स में क्या एंट्री रहेगा और डेटर में क्या एंट्री रहेगा? बैड डेट में पहले डेटर में करते हैं, हमने सेल किया है तो डेटर टू, सेल्स की जगह डेटर टू कंसाइनर, तो डेटर में टू कंसाइनर 55,000 और फिर बाय बैंक कितना आया 54,400 और बाय बैड डेट 600. ये समझ आया? बैंक बैड डेट्स टू डेटर 54,400 आया और बाकी का बैड डेट्स हो गया. एंड देन बैड डेट्स में आएगा टू डेटर 600 रुपया और बाय P&L नहीं, बाय P&L कभी जब कमीशन मिला हो तभी, तो बाय कंसाइनर 600 रुपया. ये छोटे छोटे अकाउंट है. कमीशन अकाउंट कैसा दिखेगा? तो इधर कमीशन अकाउंट बाय चांस अगर पूछा तो हमने क्या लिखा ऊपर? कंसाइनर टू कमीशन. कमीशन में बाय कंसाइनर कितना था कमीशन? कुछ कमीशन, एक कंसाइनर के जगह एक्स लिख लो, नाम दिया है ये. इधर बाय एक्स, इधर 2x, इधर बाय एक्स. कितना था कमीशन? 5,500 रुपया और ये जाएगा टू P&L. इसका इनकम बन के 5,500. ओके. ऐसे बैंक अकाउंट, कैश, जो पूछा है आपको सब में वो अकाउंट एक दो लाइन का बनाना पड़े सपोज. सेफ साइड के लिए एक सब में देख लो. ये जर्नल ड्रॉ कर लो, इसकी जर्नल करते हैं हम लोग. या
अगर इसमें डेल क्रेडर कमीशन होता तो तो फिर कंजाइन कमीशन के साथ ही, हाँ इसके अकाउंट में ऊपर कुछ नहीं एंट्री आता ना। डेल क्रेडिट का कमीशन होता तो ऊपर ये बैड डेट्स कहाँ पे जाता है? ये बैड डेट्स ये ना पीएनएल में जाता है, बाय एक्स की जगह बाय पीएनएल। कुछ नहीं आता ना, दो बैंक किया था वैसे ऊपर कुछ नहीं आएगा ना। हाँ तो बैड डेट्स का कुछ नहीं आएगा, हाँ बैड डेट्स का कुछ एंट्री नहीं आएगा, कंसाइनर अकाउंट में नहीं आएगा। ये सर आपने करस्पॉन्ड डेटर्स में बाई बैंक का एंट्री क्यों किया है? बाकी पैसा आ गया ना, 600 रुपए बैड डेट्स है ना। आई एम अज्यूमिंग ऑल द सेल्स आर ऑन क्रेडिट, मैंने ऊपर डेटर मारा है ना इधर। अच्छा एंड ऑफ द ईयर सब पैसा आ गया ना। नहीं, एंड ऑफ द ईयर रेमिटेंस तो ठीक है, कंसाइनी को भी पूरा पैसा आ गया है ना। बैड डेट 600 है ना, मतलब बाकी पैसा आ ही गया है ना। समझा? हाँ सर। दैट यू कैन अज्यूम दैट। ये पूछेगा नहीं डेटर वेटर अकाउंट एंड ऑल कभी, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आया तो, और डेटर का भी अज्यूम करने का जब वो क्रेडिट सेल हो तब। इफ यू आर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट देन यू शो दैट। ओके, डेटर अकाउंट है। जर्नल ड्रॉ कर लो इसका फटाफट। इन द बुक्स ऑफ वाई डेट वाइज जाएंगे। इन द बुक्स ऑफ वाई गो डेट वाइज, देखते जाओ। X sent on 1st July 2016 to Y, goods costing 50,000, spent 1,000 on packaging. ये आएगी एंट्री? नहीं। Y received the consignment on 3rd July and sent his acceptance. ये आएगी। 3rd July को क्या एंट्री करेगा Y? Consigner to BP. X to BP. X to BP 30,000. X to BP 30,000. Advance bill accepted. Advance bill accepted. Advance bill accepted. Then Y spent 2,000 freight carriage, go down rent. अभी ये सब डेट्स अपने को नहीं पता है, तो हमने बताया वहां पे भी किया था कंसाइनर के बुक में। कंसाइनी के सब ट्रांजैक्शन कौन से डेट पे करने हैं आपको? लास्ट डेट। अकाउंट सेल्स के डेट पे, जो अकाउंट सेल्स का डेट है जनरली वो लास्ट डेट रहेगा। तो अभी सब एंट्री 31st को, उससे पहले वो बिल ऑनर करने की एक एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 31 दिसंबर से पहले हो रहा है शायद। कितने महीने का बिल था? 7-10 को ऑनर हो रहा है। 7-10 को हो रहा है, 7 अक्टूबर को हो रहा है, या जुलाई था ना, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर एक एंट्री बीच में करनी पड़ेगी। खा मत जाना अगर जर्नल पूछा है तो। बीपी टू कैश ऑनर, बीपी टू कैश ऑनर करने की एंट्री। ओके 6th October ना? 6th की 7 3rd है ना, तो 6th, सॉरी 3 months 3 days, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6th of October। 6th October बीपी टू कैश, बीपी टू बैंक, जो भी लिखो, बीपी टू बैंक विल बी 30,000 बीपी ऑनर्ड, 30,000 बीपी ऑनर्ड। बाकी सब अभी 31 दिसंबर। तो एक्सपेंस का एंट्री मारो सबसे पहला, वाई स्पेंट फ्रेट कार्टेज, गो डाउन इंश्योरेंस, क्या होगा एंट्री? एंट्री X to bank. X to bank, X to bank 2,800। फिर सेल्स हुआ, क्या होगा उसका एंट्री? बैंक टू एक्स। डेटर, बैड डेट्स है ना, इसलिए बोला ना डेटर अज्यूम करना। बैंक टू एक्स करोगे तो बैड डेट्स होगा ही नहीं। या बैंक डेटर टू एक्स लिखो, या डेटर टू एक्स लिखो, ठीक है। तो डेटर टू एक्स, समझा? डेटर टू सेल के जगह डेटर टू एक्स, मैंने उसका इनकम रिसीव किया, तो डेटर टू एक्स दैट विल बी 55,000 गुड सोल्ड। डेटर टू एक्स 55,000। फिर कमीशन का क्या एंट्री होगा? एक्स टू कमीशन 5500, एक्स टू कमीशन 5500, एक्स टू कमीशन 5500। फिर बैड डेट्स का क्या एंट्री करोगे? अभी बताओ मुझे पहले, बैड डेट्स की क्या एंट्री करोगे कंसाइनी के बुक्स में? एक्स टू बैड डेट्स है,
एक्स टू बैड डेट से पहले बैड डेट्स की रिकॉर्डिंग एंट्री करनी पड़ेगी ना, फिर ट्रांसफर करोगे इसको। बैड डेट्स टू डेटर्स, कंसाइनमेंट टू बैड डेट टू डेटर, हाँ बैड डेट टू डेटर और फिर एक्स टू बैड डेट्स। तो बैड डेट टू डेटर विल बी 600, बैड डेट टू डेटर विल बी 600 एंड देन एक्स टू बैड डेट, क्यों? क्योंकि नो डेल क्रेडिट इज अलाउड। एक्स टू बैड डेट्स, बैड डेट टू डेटर, बैड डेट रिकॉर्डेड, रेमिटेंस रिसीव्ड, ओके। रेमिटेंस रिसीव्ड का भी साथ में कर देना। बैंक बैड डेट टू डेटर ऐसा कर दो, बैंक बैड डेट टू डेटर, बैंक बैड डेट टू डेटर 400, 600, 55,000। बैंक बैड डेट टू डेटर साथ ही में कर दो, बैंक बैड डेट टू डेटर 54, 400, 600 and 55,000, okay। Remittance amount received from debtor and bad debts incurred, and then will you transfer these bad debts to P&L or will you transfer this bad debt to consignor? Consignor. So X to bad debt, X to bad debt 600, X to bad debt 600 being bad debts transferred to consignor, being bad debts transferred to consignor, and remittance, final remittance का एंट्री क्या होगा आपका? X to bank कितना था? 16100, X to bank 16100, X to bank 16100, final settlement made, final remittance made, final settlement, final remittance made। अभी इसमें जरा नोट लिखना assumption का एक, number 1, it is assumed that final remittance is made, it is assumed that final remittance is made, it is assumed that final remittance is made। Number 2, it is assumed that BP is honored, it is assumed that BP is honored, it is assumed that BP is honored। Number 3, it is assumed that all sales are on credit basis, it is assumed that all sales are on credit basis, it is assumed that all sales are on credit basis। सर ये सब का एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ये सब अकाउंट्स नहीं पूछेगा आपको, जर्नल पूछ सकता है, ये पॉसिबल है। करेंगे और प्रैक्टिस, टेंशन मत ले, ओके। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें कंसाइनी के बुक में अगर आपको पीएनएल एक्सट्रैक्ट पूछता है तो पीएनएल एक्सट्रैक्ट में क्या दिखेगा? कंसाइनी के बुक में पीएनएल एक्सट्रैक्ट कमीशन, ये दिख रहा है आपको? ये दो एंट्रीज दिखेंगी। बाय पीएनएल का क्या दिखेगा? नहीं, ये सब में नहीं दिखेगा ना, ये सब में तो खाली कमीशन ही दिखेगा। ये सब में कहा तुमने बाय पीएनएल किया? ये सब में खाली यही दिखेगा, कमीशन, टू पीएनएल का बाय कमीशन, खत्म। हाँ, अगर उसने खुद बेयर किया होता बैड डेट बाय पीएनएल तो फिर दोनों दिखता, टू बैड डेट बाय कमीशन, दो आइटम्स दिखते। वो कब दिखते? अगर क्या अलाउ किया? डेल क्रेडिट। अगर डेल क्रेडिट ने कमीशन अलाउ किया होता तो कमीशन और बैड डेट दोनों दिखते हैं, करेक्ट? क्रेडिट साइड कमीशन, डेबिट साइड बैड डेट। और अगर नहीं किया है तो फिर खाली बैड डेट। अगर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट पूछा जाता तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में देखो, मैंने ऊपर बताया था कंसाइनर के बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में दो आइटम्स दिखता है, स्टॉक एंड डेटर, कंसाइनी अकाउंट। यहाँ पे तो कोई स्टॉक का सवाल नहीं है, इसका कोई स्टॉक है नहीं। तो जैसे डेटर था ना, कंसाइनी वहां पे डेटर था, वैसे यहाँ पे कंसाइनर कौन है? हमारा क्रेडिटर है। तो अगर कंसाइनर सेटल नहीं हुआ होता तो ये 16100 दिखता लायबिलिटी में एज अ क्रेडिटर, ओके। बट यहाँ पे तो सेटल हो गया है तो कुछ नहीं दिखेगा, बैलेंस शीट में कुछ नहीं। सर जो पीएनएल एक्सट्रैक्ट का बैलेंस होगा हम उसको कितना डालेंगे? जो पीएनएल एक्सट्रैक्ट का डिफरेंस है वो कुछ नहीं डालने का, एक्सट्रैक्ट है, नेट प्रॉफिट नहीं ढूंढने का, खाली एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट है, दोनों को सेपरेटली दिखाओ, खत्म करो। पीएनएल अकाउंट एक्सट्रैक्ट ऐसे दिखेगा, देख लो,
P&L अकाउंट एक्सट्रैक्ट, ये सम का नहीं है, जनरल बता रहा हूँ. P&L एक्सट्रैक्ट will look like this. इधर आएगा 2 bad debts, इधर आएगा by commission, स्टोरी होगा. सपोज 2 bad debts 500, by commission 700, खत्म. नेट प्रॉफिट नहीं हो उसका. ओके, खाली इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं हम लोग. P&L एक्सट्रैक्ट. सर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में बीपी या बीआर दिख सकता है अगर नहीं, अगर ऑनर नहीं हुआ है तो हाँ तो दिख सकता है. लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं भैया, अज्यूम करते हैं हर बार ऑनर हो चुका है ना. हाँ तो नहीं दिखेगा. देन टेक आउट सम नंबर. Sum number 9, question number 9. Question number 9. I want you to do in the books of consignee. You make consignor's account, make bad debt account, make commission account. Come on. In the books of consignee, question 9. You have the solution with you. Fadafat, tabadtop. In the books of consignee, you have the solution. Calculation का लफड़ा नहीं है कुछ. Make consignor account, make bad debt account, make commission account and debtor account. Consignment debtor account भी बना. Make debtor account. इस debtor को बोलते हैं consignment debtor या debtor, चलेगा. Debtor या debtor is one and the same. Question number 9. यहाँ पर कुछ बैड डेट्स हुआ है, चेक कर लो. नहीं. नो बैड डेट्स. ओके, तो यहाँ पर आपका विश, यू कैन अज्यूम द ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट, यू कैन अज्यूम द ट्रांजैक्शन इज ऑन कैश. कैश में किया है तो फिर डेटर अकाउंट नहीं दिखेगा. ओके, अजम्पशन लिख देने का, अज्यूम दैट एंटायर सेल इज ऑन क्रेडिट, अज्यूम दैट एंटायर सेल इज ऑन कैश. मैंने आपको बोला है डेटर अकाउंट, तो अजम्पशन लिख के क्रेडिट में अज्यूम करना, क्रेडिट सेल अज्यूम करना. टोटल कमीशन कितना आ रहा है, टोटल सेल्स कितना आ रहा है और टोटल कमीशन कितना आ रहा है. Sales 88800. एंड कमीशन 26640. एंड दिस अपना बैड डेट्स तो है नहीं, तो रेमिटेंस, हाउ मच वाज योर रेमिटेंस. रेमिटेंस कितना आ रहा है. 798910. 798910. एंड ये कमीशन अकाउंट, बैड डेट अकाउंट भी बनाने की आएगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं.
एंड इधर आएगा बाय वाई। सर डेटर की जगह डायरेक्ट बैंक में ले लिया सेल्स, तो चलेगा, डेटर अकाउंट नहीं बनाने का तो ना? डेटर अकाउंट नहीं बनाने का। यू कैन अज्यूम दैट ऑल सेल्स आर ऑन कैश, अजम्पशन लिख देने का उधर, अज्यूम दैट ऑल सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। खाली जब ये बैड डेट्स वगैरह का लफड़ा हो ना, तब ये करना पड़ेगा आपको। एक और समझना, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में आपको सब बनाना पड़ेगा। द बुक्स ऑफ कंजाइनी, that is in the books of Kale, the books of Kale of Mumbai, you'll have H limited account, consignor, that is consignor account, you'll have bad debts account, you'll have commission account, and you will have debtor account. अभी करना है कि होमवर्क है? अभी अभी क्वेश्चन 18 अभी सर अभी लास्ट समय ना? नहीं करते जाओ अभी। उसमें आपको एग्जैक्टली पता भी है कितना उसने क्रेडिट पे बेचा है, कितना कैश में बेचा है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है सब। तो इधर कुछ अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है, नो नीड टू अज्यूम एनीथिंग। सोल्यूशन है आपके पास, उधर देखो, उसके बेसिस पे बनाओ। Sorry. What was the commission? 3280.
वे इधर है ना, थोड़ा कैच है वापस, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है थोड़ा, तो कभी कभार ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, आपको अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो क्या होता है कंसाइनमेंट में जनरली है ना, दो तरीके से आप ये बैड डेट ट्रांसफर कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो डेल क्रेडिट कमीशन है, राइट, डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है, राइट, तो हु शुड बेयर द बैड डेट्स? कंसाइनी। तो किधर जाना चाहिए बैड डेट? पीएनएल में जाना चाहिए, बराबर है। बट ये जो सेटलमेंट है ना, आप पीएनएल के थ्रू भी कर सकते हो या कमीशन के थ्रू भी कर सकते हो। इसको कमीशन अकाउंट में डाल देने का, मैं आपको एक और वैरायटी दिखा रहा हूं इधर। और कमीशन में करस्पॉन्डिंग एंट्री आएगा टू बैड डेट 1640, और इधर ऊपर का करस्पॉन्डिंग एंट्री आएगा बाय एच लिमिटेड, ये जो दिख रहा है टू कमीशन का बाय एच लिमिटेड 3280, और फिर नेट अमाउंट यू ट्रांसफर इट टू पीएनएल एज 1640। तो क्या बोलते हैं कि जब आपको डेल क्रेडिट कमीशन वगैरह मिल रहा है तो वो कंजाइनी अपना कमीशन को बैड डेट्स के साथ सेट ऑफ कर देगा, राइट ऑफ कर देगा। उसके बाद जो नेट डिफरेंस है वो पीएनएल, अल्टीमेट आंसर सेम ही है। आप उधर बाय पीएनएल लिखो 1640, मतलब बाय पीएनएल में टू बैड डेट 1640 और 3280 कमीशन, नेट गेन हुआ है ना आपका 1640 का, नेट गेन इधर भी दिख रहा है 1640। खाली आपने क्या किया, instead of doing PNL to bad debt, first you write that bad debt via commission, so commission to bad debt and then PNL to commission, net entry जो भी आ रहा है, टू PNL या बाय PNL, कमीशन अकाउंट में अल्टीमेटली जो आ रहा है उसको PNL में डाल दो, बैड डेट्स को डायरेक्टली मत डालो PNL में। समझ में आ रहा है क्या किया? इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग बैड डेट्स डायरेक्टली टू PNL, ट्रांसफर दैट बैड डेट फर्स्ट टू कमीशन एंड देन डिफरेंस ऑफ कमीशन गोज टू PNL। ये इधर क्लिक हुआ तो ठीक है, इधर ना भी किया, दोनों में लिख दिया बाय पीएनएल टू पीएनएल नॉमिनल अकाउंट, एब्सोल्युटली फाइन। थियरी में याद रखना, थियरी में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेयर डज कंसाइनी ट्रांसफर द बैड डेट्स इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड? वेयर डज कंसाइनी ट्रांसफर द बैड डेट्स इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड? सो योर आंसर शुड बी व्हाट? कमीशन अकाउंट। इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल यू ट्रांसफर इट टू कमीशन अकाउंट। ओके, ये खाली थियरी के लिए है, क्यों पूछा जाता है, एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम है। डायरेक्टली पीएनएल में डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सम रिजिड क्वेश्चंस आर देयर, सो यू नीड टू टेक केयर। कभी एमसीक्यू में पूछते थे काफी बारी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इधर ट्रू और फॉल्स में एक ही जगह पे वो आंसर आ सकता है और कुछ नहीं है, बाकी सब जगह तो चांस ही नहीं है उसका। प्रैक्टिकली in the sum you need not worry, you can write directly by PNL also, okay, so by PNL 1640 और इधर directly to PNL 3280 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ओके, बाय PNL 1640 टू PNL 3280, नो प्रॉब्लम। थियोरी में थोड़ा याद रखना, जब डेल क्रेडिट अलाउड है तो पहले कमीशन में डालने का, फिर नेट PNL। ओके, बाय चांस आया तो, हाँ सॉरी ऊपर स्क्रॉल करो ना भाई। हाँ एक मिनट, हाँ मेरे को जरा बोल दो ना एक मिनट, फाइनल रेमिटेंस कितना आ रहा है तुमको इधर? 21020। ये देख लो जरा, चेक कर लो बराबर है क्या पूरा, प्लीज चेक। Did you get these accounts entries on your own? Were you able to do it? Anyone any doubt? Did not understand? Cash credit part, bad debt part. बोलो, किसी को नहीं समझ में आया कैसे करना है, क्या एंट्री करना है, बताओ। एक्सप्लेन अगेन। एनी पॉइंट? एक कुकर का पैसा नहीं आया तो वो बैड डेट हो गया, बैड डेट टू डेटर, और फिर क्योंकि डेल क्रेडिट अलाउड था तो खुद बेयर कर लिया, और मैंने यहाँ पे कमीशन के थ्रू एडजस्ट किया, पीएनएल से भी लिख सकते हो। सम करते वक्त टेंशन नहीं लेना है, बाय चांस ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो थोड़ा दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जब डेल क्रेडिट अलाउ होगा तब बैड डेट पहले वाया कमीशन और फिर पीएनएल। ओके, वो कंटेक्स्ट में पूछा तो, वरना तो दोनों डायरेक्टली पीएनएल में डालो, नो प्रॉब्लम।
चलो क्वेश्चन 17 लास्ट वाला करो, उसमें कंजाइनी का बुक में बनाओ फटाफट। एक मिनट, क्वेश्चन 17 हमने किया नहीं है ना अभी तक, सॉल्व ही नहीं किया हमने। हाँ नहीं किया, बाकी है अपना क्वेश्चन 17 बाकी है, रुको क्वेश्चन 17 बाकी है। क्वेश्चन नहीं नहीं, एक मिनट, 17 बाकी है अपना। बस 16th वाला, लास्ट वन इज 16th। टीनू लास्ट क्वेश्चन, चलो बना लो कंजाइनी के बुक में। कंजाइनर अकाउंट, कंजाइनर अकाउंट, बैड डेट अकाउंट, डेटर अकाउंट, कमीशन अकाउंट, 4 अकाउंट। इसमें भी यू कैन अज्यूम ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, क्योंकि कुछ पता नहीं है आपको। assumption लिख देना, assume that all sales are on credit. Question 16 last sum, that's it. Then we wind up next lecture. We'll be doing again some varieties. Next year mostly next में ही खत्म नहीं हुआ तो एक लेक्चर और लगेगा। वेडनेसडे तो पक्का खत्म है। Wednesday will be starting with shares then. वो एक काम करना, फिर आप टेस्ट कभी लिखोगे? सैटरडे लिख दोगे इवनिंग टेस्ट कंसाइनमेंट का, चलेगा? सैटरडे इवनिंग। हेलो, इवनिंग मतलब 3 o'clock है ना? इवनिंग में तो क्लास है राजू की। नहीं राजीव सर के क्लास के बाद। नहीं 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 ले लो। नहीं सर नेक्स्ट वेडनेसडे ले लो ना, छोड़ो ना। आपके लेक्चर टाइम पे ही लो जब भी लेना है। शाबाश, ऐसा ही काम करो। पोर्शन जल्दी खत्म हो रहा है, अच्छा बात है ना, चल खा रहे हो तुम लोग। एक काम करना, चलो मंडे दे दो, मंडे मॉर्निंग दे देना, ठीक है? कॉलेज है? अरे मतलब आफ्टर कॉलेज, हाँ 1 बजे। 12 बजे तक कॉलेज है। हाँ 1 से 2 दे देना। सर 1:30 को लेक्चर है। क्या बोल रहे हो? बाद में 1:30 बजे तो क्लास होगा ना? अरे यार हमारा शेड्यूल पूरा घूम गया है मेरा दिमाग। छोड़ो ना सर, अभी लेक्चर में ही ले लो वेडनेसडे को, और क्या। संडे दे दो फिर, चलो संडे दे दो। सर एक ही दिन तो मिलता है संडे आराम के नहीं, लिए, राजीव अभी सर सब भी संडे क्लास मत ले लो। रहे हैं संडे को। अभी मेहरबानी करो संडे मेरे को पे, आ रहे मैं हैं। तुमको इतना सारा संडे छुट्टी दिया है, मेरे को एक अरे संडे दे नहीं, दो। राजीव सर ने बोला कि वो उनका जो है ना स्टडी कैंप, वो संडे को भी होने वाला है, तो ये उनका संडे मैं बात करता हूँ थोड़ा सर के साथ, ये संडे स्टडी कैंप नहीं रखेंगे। पर उनका लेक्चर तो होने ही वाला है, स्टडी लेक्चर कैंप रहेगा, लेक्चर रहेगा। और अभी एक घंटा संडे को एक दिन तो छुट्टी दो, सब लेक्चर रखते हैं संडे को भी यार, एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता। मैं हमेशा छुट्टी ही दिया है, मेरे को भी मत फाड़ो। बट अब हम अपना लेक्चर के टाइम पे ही ले लो ना टेस्ट। जीने दो हमें थोड़ा। सर ये कैसा पर्सनालिटी है सर? पोर्शन तो हो गया है अभी, जाने दो एक संडे तरह। सर हम लोग के बैच में आपने एक भी संडे छुट्टी नहीं दिया था। ए भाई कौन है ये? अच्छा हाँ ईशान। हाँ हम लोग को एक भी छुट्टी नहीं दिया था, हम लोग को इतना सारा छुट्टी दे रहे हो। अरे ये लोग को कितना रगड़ा है मालूम नहीं है, तो वीक में बेचारा लोग कितना हर 6 दिन आया है, एक दिन दे दे। सर आप भी मानते हो ना, मतलब आप भी मानते हो ना बहुत रगड़ा, तो संडे छोड़ दो, बाकी कभी भी आपके लेक्चर के टाइम में ले लो एक दिन, क्या फर्क पड़ेगा अभी। आप अभी सामने से अभी आपने बोला ना पोर्शन जल्दी खत्म हो रहा है।
जल्दी हो जाएगा अगर तुम मुझे लेने दोगे सर तो। एक दिन में क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फर्क सर? पड़ेगा। अभी एक दिन पोर्शन जल्दी खत्म हुआ कि नहीं? 15 के बदले 16 को खत्म होएगा, क्या? चलेगा सर अभी एक दिन। ठीक है चलो, तो एक काम करते हैं अपन सैटरडे को लेक्चर में ही ले लो। को लेक्चर में 1 घंटा टेस्ट और 1 घंटा हाँ 1 घंटा पढ़ा लो, आप 1 घंटा टेस्ट ले लो। 1 घंटा टेस्ट 1 घंटा लेक्चर, ठीक है। 1 आवर टेस्ट 1 आवर लेक्चर। तो 1 घंटा तो आप ऐसे ज्यादा ले लेके कवर कर लोगे, उसमें क्या? अभी क्या तकलीफ हुआ तेरे को? लेक्चर के अंदर भी फिट कर रहा है तो भी प्रॉब्लम। हाँ चलेगा चलेगा। सैटरडे 1 घंटा टेस्ट 1 घंटा लेक्चर, चलो हो गया बार्गेनिंग सब। देखो चलो लास्ट सम नंबर 16 हो गया क्या? 16 बात में हो भी क्या रहेगा? नहीं आ रहा है तो वो दो। assumption debtor assume all sales are on credit, write the assumption। तुम लोग ईशान और ये लोग का मेरा आधा टाइम कॉलेज में ही जाता था, लोगों को याद है? ईशान कितना बजे तक आता था तू और हेत क्लास में? वो थकान तो हो जाता था ना सर अभी। थकान 1:30 बजे आता था तू 12:30 का लेक्चर में। तो 12:30 का आपने एक भी लेक्चर ही नहीं रखा था। हाँ 12:45 का एक्चुअल टाइम रखा था तुम्हारा कॉलेज से कनेक्टेड। 12:45 का 1 होता था, फिर 1:30, तो उतना तो ठीक है ना। उसमें खा जाता था सब टाइम। इसके लिए ये लोग का अभी कॉलेज नहीं है ना, तो संडे दे सकता है मैं। आई हैव गॉन आराम से ओनली, कुछ गाय नहीं किया है टाइम। अभी भी आराम से अपन सितंबर तक उड़ाया था कुछ। अच्छे से करना इज बेटर। क्या गाय में क्या है, जल्दी खत्म कर दो, फिर बराबर कुछ हुआ नहीं, तकलीफ रह जाएगा, दैट्स एन इश्यू। आई एम नॉट ऑफ दैट ओपिनियन। सर आपने इन लोग को तो वैसे भी टाइम पे भी तो छोड़ा है ना। हम लोग को तो आधा पौना घंटा एक्सटेंड करते थे। पूछो ये लोग से, कौन पूछो। सर का रिकॉर्ड है अब तक 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया सर। ये कौन बोल रहे हैं? 2 बजे तक। कौन है ये? कौन? मेरे को जो जानता है उसको मालूम है, मेरा एंडिंग टाइम कभी फिक्स होने वाला ही नहीं है। कभी नहीं। ये तो अच्छा है इसलिए राजीव अभी सर का अच्छा क्लास है, एंड आपका में, बीच वरना में यार ऐसे सर आप extend 9 ही नहीं बजे तक होगा। 9 छोड़ोगे बज आपका जाता बस चले तो। सर आपके लिए बीच का ही टाइम एकदम बराबर है, फिर आपको छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए मैं जानबूझ के ना एंड का टाइम उठाता है। मेरे को कभी एक्स्ट्रा करने का रहेगा ना तो मैं ले सकता है। आई ट्राई टू टेक द लास्ट स्लॉट। फंस गए सर बीच में। ठीक है, अभी हो रहा है अपना, अभी एक ही है शेयर से, अभी खत्म फिर पोर्शन। सर अब नेक्स्ट प्रीलिम्स कब होगा? अक्टूबर फर्स्ट वीक। अभी है, आ जाएगा अभी अक्टूबर। थोड़े टाइम में। हाँ तो अभी बस अभी सब फाइनली पढ़ाई चालू है ना। आधा तुम्हारा रिवीजन भी हो गया है, एमटीपी हमने सॉल्व कर लिया है, पेपर सॉल्व कर लिया है। अभी तुम्हारा आधा 2-3 पेपर सर लॉ का बाकी है। पोर्शन फटाफट कर खत्म करवाओ ना प्लीज। हाँ भाई लॉ का भी करते हैं। लॉ का एलएलपी हो गया, नहीं, बाकी और कंपनीज कंपनीज भी एक्ट का नहीं खाली हुआ फर्स्ट ही है। हुआ है। या कंपनीज एक्ट स्टार्ट हो गया है ना फर्स्ट। मतलब चालू किया अभी तो जस्ट। बड़ा है बहुत। होएगा, तुम ऐसा टेंशन मत लो। ऐसा है, जो पोर्शन हो गया ना उसका पढ़ाई चालू कर दो, जो नहीं हुआ वो अच्छे से हो जाएगा फिर तुम्हारा। सर दिन का 6 घंटा क्लास में जाता है, अभी बैठने का भी मन नहीं करता इसके बाद। हमारा तो सुबह सर कॉलेज भी क्लास है और ना बहुत एनएम वालों बेकार का टाइम तो पे 1 to और भी 7:30 कॉलेज भी मतलब 10 घंटे तो हो NM जाता है वालों दिन को का। क्लास भी चालू, कॉलेज भी चालू इनका तो। 1 से 7:30। 10:30 घंटा क्लास है हमारा सर। जैसा तू बैठता है सब लेक्चर एनएम का। हाँ अभी बैठ जाएंगे तो अच्छा है ना। हाँ फिर बाद में नहीं जाने का ना कॉलेज में। वीडियो ऑन रखने को बोलता है क्या? नहीं सो जाने का बैठ के। हाँ तो सो तो जाने बैठ के अपना काम करने का ना, होमवर्क। आपका होमवर्क ही करता है ना। ही करते हम लोग। पढ़ नहीं सकते ना, पर ऐसे कोई मुंह पे ऐसे चिल्ला बोल करता है। सुबह 6:45 बजे सर कैसे शांत से बैठ के कैसे होगा तभी कुछ ऐसा होमवर्क रहेगा तो कर सकते हैं। और वो लोग बीच में पार्टिसिपेंट्स को खोलते हैं, किसी को भी बोलते हैं कि अनम्यूट करो चेक करने के लिए कि आप वीडियो भी प्रेजेंट हो ऑन कि करने नहीं। को बोलते हैं। और नसीब अगर खराब निकले तो बराबर है, वो तो अनम्यूट करके रखना पड़ेगा, रास्ता नहीं है। वीडियो ऑफ करके खाली होमवर्क कर सकते हो और कुछ नहीं। इसलिए ईयरफोन्स डाल के रखना पड़ता है सुनने के लिए। सर ये लोग तो बहुत ही सीधे हैं, बाकी सब लोग तो दोस्तों को बोल देते हैं कॉल कर। अटेंडेंस नहीं ले रहे, ऐसे डाउनलोड कर लेते, लेकिन कभी चेक किया तो ऐसे
करो यार, थोड़ा देखो, एक 15-20 दिन पता चलेगा, फिर थोड़ा थोड़ा लूप होल्स निकलेगा। सोमया चालू होने वाला है कि पढ़ाई नहीं? कर लो साथ में। अपने हरा में यार चांस ही नहीं। सोमया मजा करो। इवन पोदार ऑल्सो अभी वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा, निकाल दो फिर 15-20 दिन, एक महीना। एने मीठे भाई खून में है यार, कुछ नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टनेस इज इन द ब्लड। बोलो अभी हो गया ये 16 सम, एनी डाउट्स? आंसर बोलो मुझे कोई तो, प्लीज एनीवन। टेल द कंसाइनर अकाउंट, एंट्रीज एंड अमाउंट। मनंतीता चलो तुम बोल दो। कंसाइनर अकाउंट, रॉय अकाउंट में डेबिट साइड 2 बैंक 16,400, 2 बैंक 50,000, 2 कमीशन 8,800, 2 बैड डेट्स 1,100, 2 बैंक फाइनल रेमिटेंस 99,700 और क्रेडिट साइड बाय डेटर 1,76,000। मिला सबको? बोल दो बैड डेट अकाउंट। 2 डेटर बाय रॉय एंड कंपनी। 2 डेटर एंड बाय रॉय एंड कंपनी मिला। डेल क्रेडिट अलाउड नहीं था तो बाय रॉय एंड कंपनी। एंड डेटर अकाउंट में 2 रॉय एंड कंपनी बाय बैड डेट्स बाय बैंक। 2 रॉय एंड कंपनी बाय बैड डेट बाय बैंक, गॉट इट। एंड कमीशन में बाय रॉय एंड कंपनी 2 PNL। 2 PN, बाय रॉय एंड कंपनी एंड 2 PN। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? ओके दैट्स इट। होमवर्क के लिए कुछ नहीं है, जस्ट रिवाइज। एंड हाँ, होमवर्क के लिए, हाँ पेपर में है, आपको पेपर का सम करना है। नवंबर 2019 का कंसाइनमेंट करना है। नवंबर 2019 का कंसाइनमेंट पेपर से आपके पास, ग्रुप पे भेज रहा हूँ वापस, चाहिए तो नवंबर 2019 का कंसाइनमेंट, जस्ट 1 क्वेश्चन। ओके, पेपर एक्चुअल पेपर का कर रहे हो, अच्छे से करना, इज्जत से, जो पूछा है बराबर से बनाना। कोई डाउट है तो मैसेज करो, कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा बाय बाय। पेपर भेजना है वापस, बहुत नीचे चला गया। भेजता हूँ।